لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين صدق الله مولانا العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حياتي ومماتي خير لكم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم دوستو، اگر آپ لوگ مائک سسٹم کا خیال رکھتے ہوئے آگے آ جائیں. سب آمین کہیں. اللہ تعالی ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے سننے کو قبول فرمائے. اور میرے پیارے بھائیوں، ایک بات پر آمین کہہ دیں. اللہ نے بہت مبارک مہینہ ربیع الاول مہینہ، اس میں اللہ نے ہم کو جمع کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس محلے میں ہم کو جمع کیا ہے. آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے. میرے پیاروں، یہ مہینہ بہت پیارا مہینہ ہے، ربیع الاول مہینہ ہے. ساتھ میں بولو نا، کون سا مہینہ؟ یہی وہ مہینہ ہے جس میں ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی. اور یہی مہینے میں ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا. آسان الفاظ میں یہ کہو کہ یہی مہینہ ہمارے نبی کا آنا بھی ہے اور ہمارے نبی کا جانا بھی ہے. سب بولو نا ساتھ میں، یہی مہینے میں ہمارے نبی کا آنا بھی ہے اور جانا بھی ہے. آنا مبارک بھی یہی مہینے میں اور جانا مبارک بھی یہی مہینے میں. اور بہت پہلے ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، حیاتی و مماتی خیر لکم. ہمارے نبی نے فرمایا میرا آنا بھی مبارک، میرا جانا بھی مبارک. ارے نبی جب آئے تو زمین کے اوپر برکتیں آئی، نبی گئے تو زمین کے نیچے برکتیں نظر آئی. اللہ تعالیٰ پیارے نبی کی محبت ہم سب کو نصیب فرمائے. آئیے مولانا عبداللہ صاحب آئیے. بہت دیر کر دی آپ نے آ گیا. ہم تو سوچ رہے تھے کھانا ساتھ میں کھائیں گے. سلیمان بھائی، مولانا عبداللہ بہت ہوشیار ہے، میں کھاتا نہیں کھلاتا. خیر، اللہ تعالیٰ ہم سب کے آنے کو قبول فرمائے. بھائی مجھے آپ کے سامنے کوئی بہت لمبی چوڑی بات نہیں کرنا. میں خود اپنے دانتوں کی تکلیف میں پریشان ہوں، بہت داڑھ میں درد ہو رہا ہے. میں کوئی زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں کرنا. میں تو چاہتا ہوں کہ ہم یہ کروڑ والے یہاں ماشاءاللہ جمع ہوئے ہیں. ہم آج بہت بنیادی 3 باتیں کریں گے اور اس کے بعد ہم اپنے اپنے گھروں میں جائیں گے انشاءاللہ. لیکن میں قسم کھاؤں تو غلط نہیں ہوگا. یہ 3 باتوں پر میں اور آپ عمل کریں. اللہ نے آج کروڑ میں ہم کو جمع کیا، اللہ ہم کو جنت الفردوس میں بھی جمع کرے گا. بولو انشاءاللہ، بولو انشاءاللہ. کتنی باتیں کرنا ہم کو؟ 3 باتیں. سلیمان بھائی نے تو میرے کو کھلایا نا، تو ایسا کھلایا کہ میرے کو لگتا کہ میرے کو وصول کرتا. میرے کو کہتا کہ قاری صاحب بولتے جانا، اس زمانے کے بعد کروڑ ہے بولتے جانا. یعنی ان کے بولنے کا مقصد تو ایسا ہے کہ فجر تک میں بات ہی کرتا جاؤں. اس لیے ہم کو تو کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کرنا. پورا مجمع میرا ساتھ دے گا. بولو کتنی باتیں ہم کو کرنا؟ 3. کون تیار ہے؟ 3 باتیں. بولو عمل کریں گے انشاءاللہ. ارے میں قسم کھاتا مولانا عبداللہ صاحب، یہ علماء کرام کے درمیان میں قسم کھاتا یہ 3 باتیں پہ عمل کرو. اللہ نے ہم کو یہاں کرسیوں پہ جمع کیا، اللہ ہم کو جنت کے تخت پہ جمع کرے گا انشاءاللہ. ہاں تو بھائی کریں گے، عمل کریں گے انشاءاللہ. کتنی باتوں پہ عمل کرنا؟ 3 باتیں. اس میں سب سے پہلی بات پہ میں آ رہا ہوں، جلدی ہم 3 باتوں پر آ جائیں. سب سے پہلی بات یہ، ہم جتنے بیٹھے ہیں نا سب اپنے دل میں ایک یقین بنائے کرنے دھرنے والی ذات
اللہ کی ذات ہے. کون کون اس کے لیے تیار ہے بھائی؟ بالکل یقین یقین بھائی. کرنے دھرنے والی ذات کون؟ یعنی آواز نہیں آ رہی آپ کی؟ ساتھ میں بولو نا, کرنے دھرنے والا کون ہے؟ پورا مجمع یقین کے ساتھ کرے گا نا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کلمے کی حقیقت نصیب فرمائے. اللہ کلمے کی معرفت ہم سب کو نصیب فرمائے. پورا مجمع میرا ساتھ دے گا انشاءاللہ کہ میں جو کہوں آپ بھی اقرار کریں گے انشاءاللہ. بولو اقرار کریں گے نہیں انشاءاللہ. ہاں, 3 باتیں آپ کو کرنا, جس میں سب سے پہلی بات ہم اپنے دل کو تیار کریں. ہاں میرے کھروڑ والوں, پیارے دور و جیوڑ سے آنے والوں, اپنے دل کو بناؤ. بس یہ دل میں بات اتار دو. کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ. کھلانے والا کون؟ اللہ. پلانے والا کون؟ اللہ. ہر نبی دنیا میں آئے میرے دوستو, حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک, ایک روایت کے مطابق 2,24,000 پیغمبر آئے, ایک روایت کے مطابق 1,24,000 پیغمبر آئے, ایک روایت کے مطابق 65,000 نبی آئے. ایک قرآن کریم میں الحمدللہ رب العالمین من الجنۃ والناس, پورے قرآن کریم میں 25 پیغمبروں کا نام آیا. اللہ کی قسم جتنے نبی آئے, جتنے پیغمبر آئے, جتنے رسول آئے, سب کی پکار ایک ہی تھی, لا الہ الا اللہ. تو بھائی سب تیار ہو انشاءاللہ؟ بولو اپنے دل میں بات بٹھائیں گے انشاءاللہ. تو پورا مجمع ساتھ دے دینا, سب ساتھ میں کہیں گے انشاءاللہ. ہم سب کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ بولو ہم سب کا پیدا کرنے والا کون؟ اللہ ہی. ہمیں کھلانے والا کون ہے؟ بولو اللہ ہی. ہمیں پلانے والا کون؟ اللہ ہی. ارے ہمیں یہاں مجمع میں لانے والا کون؟ اللہ ہی. مجھے بولنے کی طاقت دینے والا کون؟ اللہ ہی. ہمیں سننے کی طاقت دینے والا کون؟ اللہ ہی. آسمان و زمین کا بنانے والا کون؟ اللہ ہی. عرش و فرش کا بنانے والا کون؟ بولو عرش و فرش کا بنانے والا کون؟ اللہ ہی. رات کو دن میں, دن کو رات میں بدلنے والا کون؟ اللہ ہی. زندے کو مردہ, مردے کو زندہ کرنے والا کون؟ بولو اللہ ہی. یقین کرو گے نا انشاءاللہ. آپ کو معلوم ہے نا مکے میں سب سے کٹر دشمن جو ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سب سے کٹر دشمن تھا, ابو جہل. بولو کون تھا؟ ابو جہل. یہ سننے جیسی بات ہے. ابو جہل ایک مرتبہ دوڑتا آیا اور ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگا, آپ سچ بتاؤ نا, آپ اللہ کے نبی ہو؟ آپ اللہ کے نبی ہو؟ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ابو جہل آیا. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو. ہاں میں اللہ کا نبی ہوں, میں اللہ کا پیغمبر ہوں, میں اللہ کا رسول ہوں, اور اللہ نے مجھے قرآن دیا ہے, اور جبرائیل میرے پاس آتے ہیں. ایمان قبول کر لے, بہت بڑا کام ہو جائے گا, جہنم سے بچ جائے گا. ہمارے نبی نے اتنے اچھے انداز میں کہا, میں اللہ کا نبی, اللہ کا پیغمبر, میں اللہ کا رسول, جبرائیل میرے پاس آوے, قرآن میرے پاس آوے. تو ابو جہل نے کیا کہا کہ وہ ایک پتھر دکھ رہا ہے, وہ مکہ تو آپ کو معلوم ہے نا پتھریلی زمین تھی, تو کہا وہ پتھر دکھ رہا, اور پتھر نہیں تھا, بڑی چٹان تھی. کہا ہمارے نبی نے کہا میرے کو نظر آتا نا, سب کو نظر آتا وہ چٹان. کہا اس میں سے پرندہ پیدا کرو, اس میں سے پرندہ پیدا کرو. صرف پیدا مت کرو, وہ پرندہ اس طرح نکلے کہ اس کے پاس لکھا ہوا ہو کہ تم اللہ کے رسول ہو. اب آپ لوگ بتاؤ, کیا ہمارے نبی دنیا میں اس کے لیے آئے تھے کہ پتھر سے پرندہ پیدا کرے؟ کھڑے بولو نا, ہمارے نبی دنیا میں اس لیے آئے تھے کہ پتھر سے پرندہ پیدا کرے. لیکن ہمارے آقا کو کتنی امت سے محبت تھی. کہا وہ پتھر سے پرندہ پیدا ہوگا, کلمہ پڑھو گے نا؟ ابو جہل سے کلمہ پڑھو گے نا, مانو گے نا میں اللہ کا نبی ہوں, میں اللہ کا رسول ہوں؟ اور ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو تھے. مان لینا اللہ جنت دے دے گا, جہنم سے بچا لے گا. میں وہ چٹان, وہ پتھر میں سے پرندہ پیدا کروں گا. یہ کہہ کر ہمارے نبی نے اپنی انگلی مبارک, بولو سبحان اللہ سبحان اللہ, ہمارے نبی نے یہ انگلی مبارک چٹان کی طرف کی, کہ چٹان پھڑپھڑانے لگا, وہ بڑا پتھر ادھر ادھر ہلنے لگا, اور اچانک اس میں سے ایک بہترین خوبصورت پرندہ آیا, اور وہ پرندے کے گویا چونچ میں ایک چمڑے کا ٹکڑا تھا جس پر لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بولو سبحان اللہ. اس پر لکھا ہوا تھا. ہمارے نبی نے فوراً وہ چمڑے کا ٹکڑا پرندے کے چونچ میں سے لیا, اور ابو جہل کو کہا, دیکھو تم کہتے تھے نا کہ پتھر میں سے پرندہ پیدا کرنا, اللہ کی قدرت دیکھو, پتھر میں سے پرندہ پیدا ہو گیا. اور تم نے کہا تھا وہ پرندہ کچھ لے کر آئے, ارے وہ پرندہ اپنی چونچ میں یہ چمڑے کا ٹکڑا لے کر آیا, اور اس میں لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہمارے نبی نے ابو جہل کو دیا اور کہا جو تم نے کہا تھا سب ہو گیا, پتھر سے پرندہ بھی پیدا ہو گیا, کلمے کی حقیقت بھی سامنے آ گئی, میں اللہ کا پیغمبر ہوں وہ بھی سامنے آ گیا. ابو جہل نے منہ بگاڑ کر کہا, اسی کا نام تو جادو ہے, اسی کا نام تو جادو. اور یہ کہ دھڑ 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 چلا گیا. بولو کون چلا گیا؟
अरे जोर से बोलो ना, कौन चला गया? तो आप अल्लाह की कसम खा कर कहो हमारे नबी को तकलीफ नहीं हुई होगी? अरे बोलो तकलीफ हुई होगी कि नहीं होगी? हमारे नबी ऐसे सन्नाटे में बैठ गए, ऐसे सन्नाटे में बैठ गए और अबू जहल चला गया। हमारे नबी ने रोते रोते कहा अल्लाह अब क्या, अब इससे ज्यादा अल्लाह तू क्या बताए? अल्लाह, ए अल्लाह, एक पत्थर में से परिंदा पैदा हुआ। अल्लाह कभी पत्थर में से परिंदा पैदा नहीं होता। अल्लाह तूने तेरी कुदरत से पत्थर से परिंदा पैदा किया। अल्लाह उसकी चोंच में चमड़े का टुकड़ा था, उसमें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा था। अरे अल्लाह, मैं तो समझता था कि ये ईमान ले आएगा, मगर ये तो जादूगर कह के चला गया, ये मुझे जादूगर कह के चला गया। ये कहकर हमारे नबी रोने लगे। तो अल्लाह की तरफ से आवाज आई, अल्लाह की तरफ से आवाज आई, अल्लाह की तरफ से आवाज आई, जिसके मुकद्दर में हिदायत नहीं होगी तुम हजारों निशानी बताएंगे, वो जादू बोल के चला जाएगा। आज भी कुरान में लिखा है। अरे बोलो ना, साथ में बोलो ना, किस में लिखा? जो हाफिज होंगे मेरे साथ में पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। बोलो ना, पारा नंबर 27, बोलो पारा नंबर। अल्लाह ने फरमाया जिनके मुकद्दर में हिदायत नहीं, बड़ी से बड़ी निशानी बताओगे, ये जादू बोलता जाएगा, अपनी ख्वाहिशात की इत्तिबा करता जाएगा, ये तुम्हें झुठलाता जाएगा। अल्लाह कहता मेरा महबूब गम मत कर, फिक्र मत कर, हिदायत देना तेरे हाथ में नहीं, हिदायत देने वाला खुद अल्लाह और अल्लाह। लेकिन हमको पता चला एक चट्टान ने भी आवाज लगाई ला इलाहा इल्लल्लाह। तो चलो आज से कौन कौन खरोड़ वाला बिल्कुल पक्का इरादा करता दिल की गहराई में, तो 3 बातें हमको करना। पहली बात ये ला इलाहा, तैयार हो आप लोग? वो ठंडा ठंडा जवाब दिया इंशाअल्लाह। सुलेमान भाई सबको खाना खिला दिया होता तो ये रहता ठंडा ठंडा जवाब देंगे तो कैसा चलेगा? क्यों? मैं खरोड़ कितने जमाने के बाद आया मालूम आपको? बहुत पहले आया था, मेरे को याद भी नहीं पड़ता कब आया था, कितने साल पहले आया था। मेरे को जहां तक लगता है कि 5 साल हो गए मौलाना आरिफ साहब, 5 साल हो गए। 5 साल में कुर्सी बदलती मेरे को आज मिली, आज मेरे को कुर्सी मिली खरोड़ में, और ऐसे ठंडा ठंडा बैठे हो। हाँ। मेरे प्यारों, मेरे को दांतों में तकलीफ है, आपको नहीं ना? कि बीवी से डरते हो? हाँ, कुछ ऐसे होते बेचारा, घर में कुछ नहीं बोलता ना मौलाना अब्दुल्ला, बाहर भी कुछ नहीं बोलता, ऐसा तो नहीं ना? तो पूरा मजमा मेरा साथ देगा ना? कितने काम हमको करना? यानी आवाज से बोलो कितने काम करना? जिसमें पहला काम बोलो ला इलाहा, बुलंद आवाज से ला इलाहा। अरे पूरा मजमा कह दे हर नबी की पुकार है बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह, हर सहाबी का पैगाम बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह, हर वली का पैगाम बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह, मैदान करबला में शहीद होने वाला इमाम हुसैन का पैगाम बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह, शेख अब्दुल कादिर जिलानी का पैगाम बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह, ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती का पैगाम बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह, सारे उलमा का पैगाम बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह। बल्कि आपको एक अजीब बात बताओ, ये कलमा बहुत जरूरी है। कलमे का मतलब मालूम है आपको? कलमा तो सभी पढ़ते, कौन नहीं पढ़ता? अरे आप लोग जब 4 साल के थे ना, 5 साल के थे, तभी अब्बा अपने को पढ़ाते थे, बेटा बोल ला इलाहा। हाँ, और कोई मेहमान आता था तो हमारा अब्बा बोलते थे मेरा बेटा तो 5 साल में अरे ऐसा कलमा पढ़ा, चल चल बेटा कलमा सुना। तो हम लोग भी सुनाते थे ला इलाहा इल्लल्लाह, और सामने 10 रुपये इनाम में मिलता भी था। लेकिन मैं आपको बुरा नहीं मानना खरोड़ वालों, जो कलमा 4 साल का था ना, आज 40 साल में भी वही कलमा, वही कलमा। कलमे का मतलब क्या था मालूम? जबान है ना, जबान, उससे कलमे को पुश करना, धक्का मारना और दिल के अंदर उतारना। उतरा कलमा दिल में? उतरा? अरे बोलो उतरा? अगर उतरा होता ना तो हम मांगते तो किससे मांगते? अल्लाह से। अल्लाह से। हमारे यहाँ तो बड़ा अजीब है मौलाना अब्दुल्ला साहब, बड़ा अजीब मामला। कितने लोग हैं ना, कितने हस्बैंड होते, आप तो माशाल्लाह यूके में रहते, ये कितने हस्बैंड होते ना, वो अपनी बीवी को यूं हाथ मारेगा, यूं। किसको? बीवी को मारेगा, ताकि टेंशन में आते हो। बीवी का हाथ मार, वो बीवी पूछेगी क्या? तेरे मामू यूके से आए ना? तो बीवी बोलेगी हाँ मेरे को मालूम है आए, यूके से आए कि कनाडा से आए कि अमेरिका से आए कि अफ्रीका, मालूम है मेरे मामा आए। पूरे खरोड़ में पैसे बांट रहा है। बोली हाँ मेरे को मालूम है, बोल ना अपने को भी कुछ दे दे।
अपनी बीवी को बोलेगा तेरे मामू आए, तेरे काका आए, तेरे चाचा आए और यूके से आए, अरे कनाडा से आए, अमेरिका से आए, अफ्रीका से आए, अरे पूरे खरोड़ में भाजी में हर जगह पैसे बांटते, अरे बोलना अपने को भी दे। इससे बड़ा बाइला कौन होगा जो बीवी से मांगता है? एक वो भिखारी होता है जो प्याला लेके घूमता है, एक वो भिखारी जो पौष भिखारी घूमता है। सच बोलो, ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा? अपने को कुछ नहीं करने का, दूसरों का इंतजार करने का। ये कलमा है, ये कलमा है। अरे कलमा वो होता भरोसा करता तो किस पे भरोसा करता? अल्लाह पे। अरे हमारे आका, मैंने कई मर्तबा सुना है, कई मर्तबा सुना है। देखो अभी ठंडी का मौसम आया, बोलो आया ठंडी का मौसम आया, पूरा मजमा बोलो ना, ठंडी का मौसम आया। पहने ना स्वेटर, पहने नहीं पहने? हाँ, तो ये तो पूछता नहीं कि काली सब तू पहनता कि नहीं? देखो मुझे अब्दुल्ला को भी देखो कैसा तैयार वैयार होकर आया, ऐसा लगता कि दूल्हा बन गया। मैं आ रहा हूँ, रवि आ रहा हूँ, तैयार रहना इंशाअल्लाह। देखो ये ठंडी का मौसम आया, अरे बोलो आया नहीं आया? ये ठंडी आता है तो हवा चलती, ठंडी 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 हवा। हाँ बोलो, ठंडी ठंडी हवा चलती नहीं चलती? मेरे दोस्तों, मैं आप कसम खा के आपको बात बताऊं, मदीने पाक में ठंडी ठंडी हवा खाने को सब, अपने को तो इंग्लैंड में करते जलने का, लेकिन वहां तो पूरा महीना, पूरा साल ठंडी हवा चलती है। तो मदीने पाक में क्या हुआ मालूम? मदीने पाक में, सब सुनना, मदीने पाक में एक मरतबा ठंडी ठंडी हवा चली। अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने पाक में, अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी घर में आवे, कभी घर के बाहर जावे, कभी घर में आवे, कभी घर के बाहर, कभी घर में, कभी घर के बाहर। अभी घर में हजरत आयशा वो हैरान हो गई कि मेरे नबी को क्या हो गया, अरे मेरे नबी को क्या हो गया? कभी घर में आते, कभी घर के बाहर जाते, कभी घर में आते, कभी घर के बाहर। और थोड़ी देर में तो हमारे नबी घर में आए और आयशा को कहा, आयशा आयशा वो वजू का पानी, वजू का पानी, वजू का पानी। हजरत आयशा ने वजू का पानी दिया, कहा मेरा मिसवाक, मेरा मिसवाक। हजरत आयशा ने मिसवाक दिया, हमारे नबी ने मिसवाक किया, वजू किया और 2 रकात नमाज पढ़ी। अब मालूम नहीं हमारे नबी कितनी देर तक रोने लगे, आंखों से आंसू बहने लगे। हजरत आयशा घबरा गई कि हुआ क्या मदीने में कि हमारे नबी वजू भी कर रहे, मिसवाक भी कर रहे, 2 रकात नमाज भी पढ़ रहे और रो भी रह गई है। और कभी घर में आते, कभी जाते, कभी घर में आते, कभी जाते। जब हमारे नबी दुआ से फारिग हो गए तो हजरत आयशा आई, हमारी माँ हजरत आयशा आई, कहा अल्लाह के रसूल क्या हो गया, मदीने में क्या हुआ? कभी बाहर, कभी अंदर, कभी बाहर, कभी अंदर, ये वजू, ये मिसवाक, ये लोटा, ये पानी, ये नमाज, क्या हुआ? अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा क्या तुझे नजर नहीं आता ठंडी ठंडी हवा चल रही है? क्या तुझे नजर नहीं आता ठंडी ठंडी हवा चल रही? तो आयशा ने सर पे हाथ रखकर कहा, ठंडी हवा चली, उसमें घर के अंदर, घर के बाहर, और वजू और मिसवाक और नमाज और दुआ, इसकी क्या जरूरत है? अरे हमारे नबी की आंखों में आंसू थे, कहा आयशा अगली उम्मत पर भी ठंडी हवा आई थी, अगली उम्मत पर ठंडी हवा आई, मगर वो हवा आती गई, आती गई, आती गई, सबको बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया, पूरी जमीन को उजाड़ दिया। मैंने 2 रकात नमाज पढ़ के कहा अल्लाह अगली उम्मत पर हवा आई थी, तूने अज़ाब बना दिया, अल्लाह मेरी उम्मत पर आए तो उसे रहमत बना देना। ये है कलमा ला इलाहा। हम लोग जब हवा चली, हम लोग कोई 2 रकात पढ़ा? अरे हाँ या नहीं? हाँ, ठंडी हवा चले, गरम गरम समोसे बना, ये कौन सी सुन्नत है गरम समोसे खाना? ये कलमे की कमजोरी है। आज से कौन कौन तैयार है भाई? भरोसा करेंगे, किस पे भरोसा करेंगे? बोलो बोलो, किस पे भरोसा? इसे किसी से मांगेंगे? अरे किसी से मांगेंगे नहीं, मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? अल्लाह, अल्लाह देने वाला। अरे जो कनाडा वाले को देता क्या अपने को नहीं देगा? जो अफ्रीका वाले को, अफ्रीका वालों का अल्लाह अलग है, हमारा अल्लाह अलग है ना। मेरे दोस्तों, मांगने की कमी है, कसम अल्लाह की। अल्लाह कहता मांग ले, मेरे दरबार में देर होगा मगर अंधेर कभी नहीं होगा। ये कलमा इतना जरूरी है। चलो मैं कुरान पे ले जाऊं इंशाअल्लाह। कुरान सुनेंगे ना? कुरान में एक पारा है, 7वां पारा, जिसमें एक सूरत है सूरतुल अनआम। हमारे उलमा तो माशाअल्लाह सब जानते हैं कौन सी सूरत, सूरतुल अनआम। कौन सा पारा? मेरी उंगलियां देखो, कौन सा पारा? इस पारे में ना अल्लाह ने, भाई कुरान तो अल्लाह का कलाम है ना, आधे पेज में, ओनली हाफ पेज, आधे पेज में अल्लाह ने 18 पैगंबरों का नाम लिया है, 18 पैगंबरों का नाम। कितने पेज में? नहीं बोल रहे सुलेमान, अरे बोलना भाई, मैं निकाह थोड़ी कबूल करवाता कि है करके मेरा मुंह देखता है। आरिफ तू तो बोल इनको, हमारे साथ में खिला कूद आती है। बोलो ना, साथ में बोलो ना, कुरान करीम में कौन सा पारा? 7वां पारा, सूरतुल अनआम। उसके आधे पेज में पूरा मजमा बोलो, अल्लाह ने कितने पैगंबरों का नाम लिया?
18 पैगम्बर, اور اللہ نے کیا تعریف کی. دیکھو میں 18 پیغمبروں کا نام میں لوں گا انشاءاللہ, آپ لوگوں کو تو انگلی پہ گننا ہے. گنو گے انشاءاللہ؟ پھر اتنا تو کام کرو گے نا, انگلیوں پر گنو گے نا انشاءاللہ. آپ گننا شروع کرو. اللہ نے 18 پیغمبروں کا نام لیا. وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ. بولو کتنے ہو گئے؟ زور سے بولو کتنے ہو گئے؟ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ. زور سے کتنے؟ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ. زور سے وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ. زور سے كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا. کتنے ہو گئے؟ 18. آپ کے چہرے دیکھ کے میں بھی گھبراتا تھا 18 تک پہنچوں گا کہ نہیں پہنچوں گا, لیکن ساتھ میں بولو نا. پارہ نمبر 7 کی آیتیں میں نے پڑھی, علماء کرام یہاں بیٹھے. اللہ نے کتنے پیغمبروں کا ذکر کیا؟ بلند آواز سے بولو کتنے پیغمبروں کا. اور اللہ نے جو تعریف کی ہے, اور صحیح میں پیغمبروں کی تعریف یہ تو مستحق ہے کہ نہیں ہے. اللہ نے پیغمبروں کی تعریف کی. سنتے جانا, اللہ نے کیا تعریف کی. اللہ نے سب سے پہلے کہا یہ 18 پیغمبر. سننا, اللہ نے کہا یہ 18 پیغمبر. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. اللہ فرماتا سارے قیامت تک آنے والوں کو ایمان ملے گا, مگر میرے 18 پیغمبر یہ ایمان کی چوٹی کو پہنچنے والے. ایمان کی نہیں, ایمان والے تو ہم بھی ہیں, مگر پیغمبر کا ایمان کہاں پہنچا ہوا؟ آسمانوں کی چوٹی پر پہنچا ہوا. آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ. اللہ فرماتا میرے بہت سے نیک بندے ہوں گے. پہلا والا دوسرے کو نیک بولے گا, دوسرا والا تیسرے کو نیک بولے گا. اللہ کہتا دنیا والے ایک دوسرے کو نیک بولے, مگر میرے 18 پیغمبر زمین پہ چلتے ہوں گے. پیدا کرنے والا اللہ انہیں نیکی کا سرٹیفکیٹ عطا کرے گا. 18 پیغمبر کو نیک کون بول رہا ہے؟ کتنی تعریف ہو؟ 2 تعریف ہو گئی نا. آگے کیا فرمایا؟ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا قیامت تک آنے والے تمہاری نیکیاں ایک پلے میں ہوگی, میرے 18 پیغمبر کی نیکیاں دوسرے پلے میں ہوگی. تمہارا پلہ ہلکا ہوگا, میرے 18 پیغمبروں کا پلہ بھاری ہوگا. اور آگے اللہ نے کیا کہا, مگر میرے ساتھ میں یاد ہو تو پڑھو, جو حافظ ہوئے پڑھو. اللہ نے کیا فرمایا؟ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ. کیا فرمایا؟ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ. پڑھو میرے ساتھ میں, وَاجْتَبَيْنَاهُمْ. اللہ فرماتا ارے دنیا میں رہنے والے تم مجھ سے محبت کرتے ہو, لیکن اللہ کہتا مجھے پوچھو میں 18 پیغمبروں سے محبت کرتا. تعریف ہو رہی کہ نہیں ہو رہی؟ اور آخر میں اللہ نے کیا تعریف کی؟ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اللہ فرماتا میرے بندو تم غلطی پہ غلطی کرو گے اس لیے کہ تم اپنی آنکھوں کی روشنی میں چلو گے. میرے 18 پیغمبر معصوم غلطی نہیں کریں گے, اس لیے کہ وہ خدا کے نور میں چلنے والے. سیدھا راستہ کن کو ملے گا؟ 18 ہو گئی. تعریف ہوئی کہ نہیں؟ بولو ہاں ہوئی کہ نہیں ہوئی. کن کی تعریف ہو رہی ہے؟ زور سے بولو کن کی تعریف ہو رہی ہے؟ لیکن دیکھو لا الہ الا اللہ اتنا ضروری ہے کہ اللہ 18 پیغمبروں کو ایک عجیب بات کہتا, اور میں صحیح کہتا, میں کبھی نہیں بولتا اگر اللہ نہ بولتا تو.
भाई मेरे में क्या हिम्मत कि मैं बोलूं, लेकिन अल्लाह ने कहा, अल्लाह ने किनको कहा? 18 पैगंबरों की तारीफ की कि नहीं की? अरे बोलो की कि नहीं की? अल्लाह ने तारीफ की, ईमान की चोटी को पहुंचे, कहा ये 18 पैगंबर, कहा सबको नेकों की सर्टिफिकेट दिया, ये 18 पैगंबर। अल्लाह ने कहा सबके अमल भारी हो गए, 18 पैगंबर। अल्लाह ने कहा मैंने मोहब्बत की, 18 पैगंबर। अल्लाह ने कहा मैंने सीधा रास्ता बताया, 18 पैगंबर। लेकिन फिर अल्लाह ने क्या फरमाया? बोलो 7वां पारा, अल्लाह ने क्या फरमाया? ज़ालिका हुदल्लाहि यहदी बिमन यशाउ मिन इबादी। बोलो है ना कुरान में, है ना? अरे बोलो है ना कुरान में? आगे क्या अल्लाह ने फरमाया? वलौ अशरकू, साथ में पढ़ो ना, बहुत 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 अजीब। अल्लाह ने फरमाया वलौ अशरकू लहबिता अन्हुम मा कानू यअमलून। अल्लाह ने फरमाया ये 18 पैगंबर कभी शिरक मत करना। बोलो 18 पैगंबर कभी शिरक मत करना, अगर शिरक हो गया नबूवत भी बर्बाद कर दूंगा और सारे अमाल तुम्हारे खत्म कर दूंगा। बताओ पैगंबर कभी शिरक करेंगे? जोर से करेंगे? लेकिन अल्लाह कहता है कि अगर करे ना तो इनके अमाल भी बर्बाद करो। तो 18 पैगंबर कभी शिरक नहीं करने वाले, लेकिन अल्लाह कहता करे तो अमाल बर्बाद करो। तो मैं और आपका ला इलाहा इल्लल्लाह कमजोर होवे तो अल्लाह कहाँ जाके फेंक देगा? बल्कि आपको एक और बात मैं आपको बताऊं, ये तो कितने पैगंबरों की बात हुई? इन 18 पैगंबरों का भी तो कोई सरदार है ना? बोलो ना, इन 18 पैगंबरों का भी तो कोई सरवर है ना? कौन है वो? सारे पैगंबरों का इमाम कौन? बोलो ना, सारे पैगंबरों का इमाम कौन? हमारे आका ताजदारे मदीना मोहम्मद रसूलुल्लाह। मेरे दोस्तों कुरान में चलो, 24वें पारे में चलो, दिल धड़क जाता है, दिल कांप जाता है। बोलो कौन सा पारा? 24वें पारे में अल्लाह हमारे नबी हमारे नबी हमारे नबी जो सारे पैगंबरों के इमाम है, सारे पैगंबरों के सरवर हैं, सारे पैगंबरों के सरदार हैं। अरे अल्लाह की कसम हमारे नबी वो नबी है जिनके तलवों को जिब्राइल ने भी चूमा है, वो हमारे नबी। बोलो कौन सा पारा? अल्लाह क्या फरमाता? वलक़द ऊहिया इलैका व इलल्लज़ीना मिन क़ब्लिक। कौन सा पारा? वलक़द ऊहिया इलैका व इलल्लज़ीना मिन क़ब्लिक लइन अशरकत लयहबतन्न अमलुक व लतकूनन्न मिनल खासिरीन बलिल्लाह फअबुद व कुन मिनश शाकिरीन। अल्लाह तबारक व तआला 24वें पारे में फरमाता, ए मेरा महबूब, तेरे से ऊंचा कोई महबूब नहीं, लेकिन मेरा महबूब शिरक नहीं, वरना अमल को बर्बाद कर दूंगा, नुकसान उठाने वालों में से होगा। अल्लाह एक की इबादत कर ले, एक एक अल्लाह करता रहेगा, हम जन्नत के दरवाजे खोलते रहेंगे। अब मेरे दोस्तों, अब बताओ हमारी क्या वैल्यू? हम क्या चीजें? इसलिए आज खरोड़ वालों समझो भिखारी भीख मांग रहा हूं, एक भीख आपसे मांगने आया हूं, आज अपने दिल में बिठा लो ला इलाहा। कौन कौन तैयार है इसके लिए? बिल्कुल पक्का वादा, पक्का वादा। और ला इलाहा इल्लल्लाह। अच्छा आप लोगों ने हाथ उठाया ला इलाहा इल्लल्लाह, मेरे को क्या मालूम के अंदर उतरा कि नहीं उतरा? इसलिए मैं आपको तरीका बताऊं। अपने को प्रॉब्लम आते? अरे भाई खरोड़ में कभी प्रॉब्लम आते? टेंशन? भाई मेरे को इंसानों के बीच में बिठाया? अरे भाई प्रॉब्लम आते कि नहीं आते? आते ना, हालात आते कि नहीं आते? अरे कभी बीवी का प्रॉब्लम, मैं बताऊं आपको, कभी बीवी का प्रॉब्लम, कभी बच्चे का प्रॉब्लम, कभी दुकान का प्रॉब्लम, कभी कारोबार का प्रॉब्लम, कभी जमीन का प्रॉब्लम, कभी खेत का प्रॉब्लम, अरे हजारों टेंशन, कभी बीमारी का प्रॉब्लम, हजारों चीजें हमारे सामने आती है। मेरे खरोड़ वालों, अगर हमारे दिल में कलमा सच्चा है, मैं मना नहीं करता। अरे मेरे को कोई प्रॉब्लम आएगा ना तो मैं मेरी बीवी को बोलूंगा देख मेरे ऊपर ऐसा प्रॉब्लम आ गया, मैं मेरे बच्चे को बोलूंगा, मैं मेरे दोस्त को बोलूंगा, अरे कभी मौलाना अब्दुल्ला साहब को बोलूंगा कि देखो मेरे ऊपर इतना बड़ा प्रॉब्लम आ गया। अरे हालात आते हैं, हम पूरी दुनिया को बोलते गए, लेकिन तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब समझ लो। बीवी को बोला कोई प्रॉब्लम नहीं, अरे बच्चे को बोला कोई हरज नहीं, अरे तूने समाज और सोसाइटी को बोला कोई हरज नहीं, लेकिन तौहीद का मतलब है पहले रब फिर सब। बोलो पहले फिर। अब हम लोग ऐसा करते हैं, पहले पैसे की जरूरत पड़ी ना तो सुबह में टेंशन में घूमेगा, नाश्ता करा नहीं करा इधर, तो बीवी पूछती है शू थયું?
क्या हुआ हाँ? हमारे कारोबार में 75% तो बीवी है, अपन तो पावली में चलते। वो पूछेगी हाँ क्या हो गया हाँ के माझे को टेंशन में देखा होता मैं हाँ क्या तो क्या बोलेगा अपनी बीवी को क्या है ना मेरे को 15,000 मिल जाए ना तो मेरा काम। तो बीवी हमको पूछेगी 15,000 करोड़ में कौन देगा? कहा अपना अब्दुल रहमान भाई है ना वो देंगे। भाई कोई हो तो माफ करना मैं तो ऐसा ही नाम बोला बोला अब्दुल रहमान भाई है वो दे। तो वो बीवी बोलेगी अगर अब्दुल रहमान भाई नहीं दिए तो अपना अयूब भाई है ना वो दे देगा। अगर अयूब भाई नहीं दिया तो मोहन अब्दुल्ला झांझी है ना वो दे देगा। अगर वो नहीं दिया तो वो सुलेमान भाई आया यूके से वो दे देगा। अब गया अब्दुल रहमान भाई के पास, अब्दुल रहमान भाई ने कहा है फिर वो अयूब भाई के पास गया, कहा अभी हालात बहुत खराब है क्या 15,000। मौलवी अब्दुल्ला के पास आया, कहा मौलवी के पास तुम्हें आया, मौलवी को तो देने का थोड़ी मौलवी के पास शर्म आती कि नहीं आती। तो आया किसके पास? तो सुलेमान भाई यूके से आया हो जाए। सुलेमान भाई बोला तारा पास से वही तो मैंने अभी अब उसको कहीं भी मिला बोलो पैसा मिला उसको, अरे साथ में बोलो मिला। अब थोबड़ा चढ़ा के घर में आ रहा, वो बीवी पूछी क्या हुआ अब्दुल रहमान भाई क्या बोला? तो क्या बोलता मालूम? अरे खरोड़ में रहने का ही नहीं, इससे बड़ा कंजूस जगह कोई नहीं है, ये रहने का ही नहीं, खरोड़ में रहने का ही नहीं। अरे उसने भी ना बोला। मेरे प्यारो मैं आज आपको एक बात कहूँ, अगर कलमा मेरे और आपके दिल में उतर गया ना एक काम करेगा, बीवी को क्या बोलने का बीवी को? अरे हाँ या नहीं? जरूरत है बीवी को बोलने की? हाँ बोलो, बाद में बोलना। बीवी को भी नहीं बोलो, बच्चों को भी नहीं बोलो। मैं आज आपको अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ अल्लाह छप्पर फाड़ के रोजी देगा। क्या करने का मालूम? किसी को कुछ नहीं बोलने का, वजू करने का, मिसवाक करने का, घर के कोने में मसल्ला बिछाने का, 2 रकात नमाज पढ़ के अल्लाह मेरे को 15,000 की जरूरत है, अल्लाह तू पूरी दुनिया को देता, अल्लाह तू सबको देता, अल्लाह अगर तू मेरे को 15,000 दे देगा मेरा काम हो जाएगा। मैं कसम खाकर कहता हूँ दुआ मांगता होगा, रोता होगा, अल्लाह दिल में बात डालेगा तुझे कहाँ जाना है। जैसे वो अपना हाथ फेर के जाएगा ना, जाएगा लेके आएगा, अल्लाह कहेगा मेरा बंदा तू नहीं गया, मैंने तुझे वहां तक पहुंचाया था। ये है अल्लाह, ला इलाहा। कौन तैयार है भाई? पहली बात के लिए अगर तैयार हो तो हम आगे चले, दूसरी बात के ऊपर चले। इसलिए अपने को बहुत ज्यादा बातें करना भाई करेंगे नहीं इंशाअल्लाह। कौन तैयार है भाई? पहला काम आज से कोई भी काम होवे क्या करने का? अरे भाई अपने को एग्जाम देना है, यूनिवर्सिटी का एग्जाम देना है, कॉलेज का एग्जाम देना है, एसएससी बोर्ड का एग्जाम देना है, अभी 12वीं का अपने को एग्जाम देना है। अरे मदरसे के भी एग्जाम शुरू होने वाले हैं, सब लोग टेंशन में होते हैं। अरे मैं कहता टेंशन क्यों लेने का? क्यों यूनिवर्सिटी का एग्जाम देना, कॉलेज का एग्जाम देना? अरे कुछ भी करना है पहले 2 रकात नमाज पढ़ ले और फिर एग्जाम में चला जा। जो देख के जाएगा अल्लाह वहीं से तुझे पास का सर्टिफिकेट अता करवाएगा। कितनी रकात पढ़ के जाओगे बोलो भाई? मेरे को यकीन हो जाए तो बहुत अच्छा। भाई पढ़ोगे आज से कोई भी काम हो गए। बीवी का टेंशन हो तो बीवी को गालियां नहीं देने का। हमारे यहाँ बहुत अजीब मामला, बीवी से झगड़ा होगा ना, तू भी ऐसी, तेरी माँ भी ऐसी, तेरा बाप भी ऐसा, एकदम हल्के खानदान की आई। तो 4 बच्चे हो गए तब तक समझ में नहीं आया, आज समझ में आया। नहीं मोहन गलत तो नहीं बोल रहा, ऐसा बीवी को बोलेगा, ऐसा बीवी को बोलेगा, होशियारी तो तलाक दे दूंगा, तलाक। जैसे अब्बा के घर की तलाक है। क्या ये तरीका, क्या तरीका मेरे दोस्तों? ये हमारा इस्लाम है, ये हमारा ईमान है। मेरे दोस्तों किसी पे जुल्म करो, अल्लाह की कसम एक बार उसकी हाई निकल जाती है ना, फिर मेरे दोस्तों अल्लाह कहता बद्दुआ के दरमियान और मेरे दरमियान कोई पर्दा बाकी नहीं रहता ना। मेरे दोस्तों किसी को मत सताओ, किसी को तकलीफ मत दो, किसी को तकलीफ मत दो मेरे प्यारे दोस्तों। तो मैं ये कह रहा था आज से कोई भी काम होगा, कोई भी काम है, बीवी का प्रॉब्लम, बच्चे का प्रॉब्लम, क्या करोगे? कौन तैयार है? आज से पूरा खरोड़ तैयार हो जाओ ना भाई। क्या करेंगे? पढ़ेंगे 2 रकात नमाज पढ़ेंगे। कौन पढ़ेगा 2 रकात नमाज? सब पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, अरे एग्जाम देने जाना है यूनिवर्सिटी का, अरे इंटरव्यू देने के लिए जाना है, अरे 12वीं का एग्जाम देना है, अरे एसएससी बोर्ड का एग्जाम देना है, अरे अल्लाह के यहाँ कोई बोर्ड की हकीकत नहीं। अल्लाह कहता मेरा महबूब ने जिस अंदाज में 2 रकात नमाज पढ़ी तू भी पढ़ ले, तुझे भी तेरी मंजिल तक पहुंचा दूंगा। तो करेंगे भाई 2 रकात नमाज पढ़ेंगे। मौलाना अब्दुल्ला साहब इनको मैं पूछ रहा हूँ, पढ़ेंगे हाँ कि नहीं? एक बार हाथ ऊपर करो तो मेरे को यकीन हो जाए पढ़ेंगे सब। पढ़ेंगे इंशाअल्लाह? पढ़ेंगे? नहीं पढ़ेंगे? पढ़ेंगे? मेरे को नहीं आता भरोसा। क्यों नहीं आता मालूम? क्यों नहीं आता मालूम? ये जो 2 रकात में बोलता हूँ ये तो नफल है,
अरे बोलो ना, ये 2 रकात क्या है? जोर से बोलो ना। नफल भाई मेरे को बीवी का, अल्लाह मेरे को बीवी का बहुत प्रॉब्लम, अल्लाह अकबर, ये 2 रकात कौन सी हो गई? अल्लाह मेरे को यूनिवर्सिटी का एग्जाम देना है, मेरे को पास होना है, 80-90% चाहिए, अल्लाह अकबर, 2 रकात कौन सी हो गई? नफल। ए अल्लाह मेरे को एसएससी बोर्ड का एग्जाम देना, अल्लाह पूरे साल मैंने मेहनत नहीं किया और एसएससी बोर्ड का एग्जाम देने जाता, अल्लाह भरोसा तो तेरे ऊपर है, अल्लाह अकबर, बोलो 2 रकात कौन सी हो गई? नफल। अरे तुम जितनी 2-2 रकात पढ़ोगे नफल, और आपने हाथ ऊपर कर करके कहा कि हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन मुझे भरोसा नहीं। उस उम्मत पे कैसे भरोसा करो जो फजर की फर्ज नहीं पढ़ता? आप लोगों ने हाथ ऊपर करके कहा नफल पढ़ेंगे, तो फर्ज कौन पढ़ेगा? कितने लोग हैं क्या कहते हैं, कारी साहब आपने बोला ना मेरे को एसएससी के लिए मैं रोज आना 2 रकात नफल पढ़ के गया, फिर भी फेल हो गया। तो मैंने कहा तेरी नफल ने क्यों काम नहीं किया? नफल उस वक्त काम, सुनो सुनो, नफल उस वक्त काम करती है जब फर्ज नमाज का उसको धक्का लगता है। भाई नफल आगे है, फर्ज नमाज उसको यूं पुश करती है, तो तेरा काम आसमानों पर उठ जाता है। अब फर्ज तो पढ़ा नहीं, अब क्या पढ़ रहा है? तो काम चलेगा? ये नफल पढ़ो, लेकिन जरूरी है फजर, जुहर, असर, मगरिब, ईशा, वितर, वाजिब, ये सब जमा होंगे, फिर 2 रकात नफल पढ़ ले, अल्लाह तेरी हर मुराद को पूरा करेगा। बोलो कौन कौन तैयार है भाई? अभी कितने लोग ऐसे ना, यहाँ कितने ऐसे बैठे मौलाना 15 दिन से फजर नहीं पढ़े होंगे और दिल में सोचता होगा, कारी साहब बोले ना यूनिवर्सिटी का एग्जाम, कल से 2-2 रकात शुरू। फजर खरोड़ में देखो, अपने को ये हिसाब किताब दुनिया में समझ में आता, खरोड़ में अल्लाह ना करे कोई जवान अपने घर में से बाहर निकले और सिर्फ शर्ट पहन के निकले। क्या पहन के? ओनली शर्ट। नहीं समझे बात? अरे भाई ओपन करो कि बात समझ में आ गई। सिर्फ शर्ट पहन के निकला और क्या कहता मालूम है? आप खरोड़ वालों 5000 रुपीज एक शर्ट मैंने खरीदा, 5000 रुपए का, आओ देखने आओ। जाएंगे देखने, और जो भी जाएगा इसको जिम्ना पड़ता है, वो बोलेगा अरे मैं शर्ट पहन के आया 5000 रुपए का, कोई देखता है बोले? सब कहेंगे जा 20 रुपए का पहनता नहीं, कम से कम पटलून तो पहन के आया, नंगा नंगा का कोई इधर आ गया। तो सच बताओ ना, ये पहनना नफल था और फर्ज हम लोग यही कर रहे हैं, फर्ज छोड़ दिया। और मेरे को कॉलेज में अल्लाह अकबर, मेरे को यूनिवर्सिटी में पास होना, अल्लाह अकबर, और सुबह फजर की नमाज। अरे मेरी बात समझ में आ रही है? आ रही है? इसलिए आज से पूरा मजमा तय करो, दिल की गहराई में बिठाएगा ला इलाहा इल्लल्लाह, साथ में बोलो ना, दिल में बिठाएगा ला इलाहा इल्लल्लाह। बल्कि मैं करोड़ आया तो मेरे को एक दिल में आती बात, बोलो मालदार बनना है। हाँ या नहीं? कोई जबरदस्ती थोड़ी ठोक रहा हो तुम्हारे, बनना है, ये बनना है। सुलेमान भाई मेरे को बहुत जल्दी बनना है। अरे मैं खरोड़ वालों से पूछता पैसा, और नजरी भाई तू तो बोल भाई, तू ऐसा सन्नाटे में बैठा जैसे बीवी जबरदस्ती धक्के मार मार के भेजी हो। अरे बोलो ना भाई, बनना, मालदार बनना। मैंने अभी सूरत में कहा हो, सारे लोग टूट पड़े, टूट पड़े, इसलिए तो पैसा किसको नहीं चाहिए, मेरे को भी चाहिए भाई। अगर आपको नहीं चाहिए तो मैं बैठा हूँ फजर तक। आपको आज मैं बात बताऊं, देखो ला इलाहा इल्लल्लाह में अल्लाह में हलाल बरकत, हलाल। मैं आपको वाकया सुनाऊं। अच्छा एक बात बताऊं, एक बहुत बड़े शख्स का नाम मैं ले रहा हूं, अल्लाह की कसम, इतने बड़े शख्स, यानी कौन मालूम? हजरत हसन। बोलो कौन? हजरत हसन। अच्छा बताओ, ऊंचे थे कि नहीं थे? अरे आली मर्तबत थे कि नहीं थे? खरे हजरत हसन कौन थे? अब्बा की तरफ नजर करो तो शेरे खुदा हजरत अली नजर आए, माँ की तरफ नजर करो तो जन्नत की खातून कौन? हजरत फातिमा नजर आए, और नाना की तरफ नजर करो तो ताजदार मदीना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हजरत हुसैन के वाक्य तो आपने बहुत सुने, करबला के। मैं आपको हजरत हुसैन का वाक्य नहीं सुना रहा हूँ, हजरत हुसैन के बड़े भाई कौन? हजरत हसन। आपको अजीब वाक्य, अजीब वाक्य, आपका दिल खुश हो जाएगा। हजरत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की उम्र अच्छी खासी, यानी बड़ी उम्र हो गई, फैमिली के साथ रहते। कौन?
حضرت کن کے ساتھ رہتے ہیں؟ اپنی فیملی. اور زمانہ کون تھا معلوم؟ حضرت معاویہ کا زمانہ. زمانہ کون تھا؟ حضرت معاویہ. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال فرمانا، حضرت ابوبکر وصال فرما گئے، پھر حضرت عمر وصال فرما گئے، پھر حضرت عثمان وصال فرما گئے، پھر حضرت علی وصال فرما گئے، پھر کون آ گئے؟ حضرت. اس زمانے کی میں بات کر رہا ہوں. حضرت حسن بولو نبی کے کون ہیں؟ نواسے. علی کے کون ہیں؟ بیٹے. فاطمہ کے کون ہیں؟ لگتے جگر. وہ حضرت حسن کے گھر میں کھانے کو نہیں. بولو حضرت حسن کے گھر میں اور پیسہ بھی نہیں گھر میں. اب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ ہم دیکھ رہے بیوی بھی بھوکی ہے، بچے بھی بھوکے ہیں. حضرت حسن ایک دن گزر گیا، ایسا ہی گزر گیا. ارے میرے دوستو کس کو بولے؟ ارے شرم بھی تو آوے، بولے شرم بھی آوے. نبی کے نواسے، نبی کے نواسے. آپ کو معلوم ہوگا جس کی سماج میں بہت ویلیو ہوئے اس کو باہر نکل کر کسی سے مانگنا ہو تو اچھا نہیں لگے. بولو اچھا نہیں لگے. ارے گاؤں کا بہت بڑا آدمی باہر جا کے کسی کو بولے اے میرے کو 100 روپیہ دینا تو کہے گا گاؤں کا اتنا بڑا آدمی ہے اور 100 روپیہ مانگنے آیا. ارے گاؤں کا بڑا آدمی مانگنے کو شرم آئے. یہ تو نبی کے نواسے تھے جن کو جنت کے جوانوں کا سردار کہا گیا تھا. ارے حضرت حسن بولو جنت کے جوانوں کے. لیکن حضرت حسن کے گھر میں حالات ہے، خود بھی بھوکے، بیوی بھوکی ہے، بچے بھوکے. بولو گھر میں کھانے کو. ایک رات گزر گئی، 2 رات گزر گئی، تیسری رات کو حضرت حسن روتے روتے سو گئے. بولو حضرت حسن روتے روتے سو گئے. تو خواب میں کون آئے؟ نانا جان. بولو خواب میں کون آئے؟ نانا جان محمد رسول اللہ. ہمارے نبی نے کہا حسن، حسن میرے نواسے کیا ہو گیا؟ اے نواسے کیا ہو گیا؟ بس حضرت حسن نے خواب میں نانا جان کو دیکھا. ارے نانا جان سے بڑھ کے کیا دولت ہوگی؟ حضرت حسن نے جلدی جلدی خواب میں ہمارے نبی کے مبارک ہاتھ کو پکڑا اور کہا اللہ کے رسول اور میرے نانا جان، میرے گھر میں پیسے نہیں، میرے گھر میں فاقہ ہے، میرے گھر میں بھی بھوکا، میری بیوی میرے بچے بھوکے. کون کہہ رہے؟ حضرت حسن. تو ہمارے نبی نے خواب میں کہا او میرے بیٹے، او میرے نواسے حسن، ایک دعا بتاتا ہوں، وہ دعا پڑھ لے. وہ دعا بولے. حضرت حسن کہتے 4 لائن کی دعا بتائی. بولو کتنے لائن کی دعا بتائی؟ حضرت حسن کہتے بس میں اٹھا اور اٹھنے کے ساتھ، بھائی وہ تو سب فرما بردار تھے. حضرت حسن کہتے میرے نانا جان نے میرے کو خواب میں دعا بتائی. بس حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، بولو کون؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ دعا خود بھی پڑھنا شروع کیا، اپنی بیوی کو پڑھانا شروع کیا، اپنے بچوں کو پڑھانا شروع کیا. اور حضرت حسن اتنا رو رو کے دعا مانگے، اتنا رو رو کے دعا مانگے، اتنا رو رو کے دعا مانگے. حضرت حسن کہتے میرے اللہ کی قسم 8 دن اور 8 رات تک میں نے اتنا رو رو کر مانگا. حضرت حسن کہتے میرے پیدا کرنے والے کی قسم اللہ نے اتنا پیسہ دیا، اللہ نے اتنی روزی دی، اللہ نے اتنی برکت دی. حضرت حسن فرماتے کوئی انسان دیتا تو گن کے دیتا، اللہ نے اتنا دیا کہ میں گن بھی نہیں پایا. کتنے دن کے اندر معاملہ حل ہو گیا؟ زور سے بولو نا. 8 دن. اچھا 8 دن اور 8 رات کے بعد حضرت حسن کہتے میرے گھر میں پیسہ ہی پیسہ، میرے گھر میں درہم ہی درہم، میرے گھر میں دینار ہی دینار. اس زمانے میں چاندی کے سکے کو درہم بولتے تھے اور سونے کے سکے کو دینار بولتے تھے. حضرت حسن کہتے میرے گھر میں درہم کا ڈھیر، دیناروں کا ڈھیر، اناج کا ڈھیر، جانوروں کا ڈھیر. ارے 8 دن میں اللہ نے چھپر پھاڑ کے غیب سے مجھے روزی عطا فرمائی. حضرت حسن کہتے 8 دن اور 8 رات کے بعد اب تو مالدار ہو گیا. میں رات کو سویا تو خواب میں پھر نانا جانا ہے. نانا جان کون؟ جناب نبی کریم صاحب. تو حضرت حسن روتے روتے کہتے ہیں اللہ کے رسول کتنی پیاری دعا بتائی. او میرے نانا، او میرے نانا جان کتنی پیاری دعا بتائی، اللہ نے میرے کو بہت دیا. حضرت حسن نے کہنا شروع کیا میرے پیارے نبی، میرے نانا جان اللہ نے میرے کو یہ دیا، اللہ نے میرے کو یہ دیا، اللہ نے میرے کو یہ دیا. ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ اے حسن، اے حسن میرے نواسے تو اکیلے نہیں، قیامت تک آنے والا میرا کوئی بھی امتی یہ 4 لائن والی دعا مانگتا جائے گا. جیسے خدا نے تجھے چھپر پھاڑ کے روزی دی ہے، یہ 4 لائن والی دعا میرا کوئی بھی امتی پڑھے گا، اللہ بھی اس کو چھپر پھاڑ کے روزی عطا کرے گا. تو دعا چاہیے؟ ارے چاہیے تو ہاں بولو، نہیں تو جانے دو. کس کس کو چاہیے؟ کیوں چاہیے؟ اب بننا ہے. اس میں کیا بھائی، جب نبی نے کہا تو ہم کو شرم کس بات کی؟ بھائی بننا ہے، میں بھی بولتا ہوں بننا ہے بھائی. لیکن یاد کریں گے وہ دعا، وہ دعا میں بھی کلمہ چھپا ہوا ہے. بولو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ. وہ دعا کون سی؟ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن سے خواب میں فرمایا 4 لائن والی دعا ہے، تو پڑھ لے. اللہ کے رسول نے فرمایا میرا نواسا تو پڑھ لے، یہ قیامت تک آنے والا کوئی بھی امتی پڑھ لے، اللہ چھپر پھاڑ کے روزی عطا کرے گا. وہ دعا کتنے لائن کی؟ بولو 4 لائن کی دعا، جس کی پہلی لائن ہے اللہم قذف فی قلبی رجاءک. پہلی لائن اللہم قذف
قذف فی قلبی رجاک. دوسری لائن واختار رجائی امن سواک. تیسری لائن حتی لا ارجو احدا غیرک. اور چوتھی لائن یا ارحم الراحمین. یاد ہو جائے گی انشاءاللہ؟ ارے بولو یاد ہو جائے گی نا. اور عربی تھوڑی ضروری ہے, میں ترجمہ کرتا ہوں, ترجمے میں 4 لائن پڑھو. اللہ کے لیے تو سب زبان برابر ہے. بولو اللہ کے لیے تو سب زبان. کتنے لائن والی دعا ہے بولو نا. حضرت حسن نے 4 لائن والی دعا بتائی. کہا میرے نبی نے خواب میں کہا ہے کوئی بھی پڑھے گا اللہ بہت پیسہ دے گا, اللہ بہت روزی دے گا, اللہ برکت والی روزی دے گا. 4 لائن. پہلی لائن اللہم قذف فی قلبی رجاء. کیا ترجمہ؟ اے اللہ میرے دل میں اگر یقین بنا دے تو تیرا بنا دے. بولو اے اللہ میرے دل میں یقین بنا دے تو تیرا بنا دے. واختار رجائی امن سوا کا. اللہ سب کے یقین کو ہٹا کے صرف تیرا یقین دلا دے. سب کے یقین کو ہٹا کے تیرا یقین عطا کر دے. کتنے جملے ہو گئے؟ حتی لا ارجو احدا غیرک. اللہ میں کسی سے امید نہ کروں, امید کروں تو صرف تجھ سے امید کروں. بولو یا ارحم الراحمین. آپ دیکھو سب جملے کا ترجمہ ایک جیسا ہی ہے. سب جملے کا ترجمہ. پہلا جملے کا ترجمہ کیا؟ اللہ میرے دل میں تیرا یقین بنا دے. نمبر 2 اللہ سب کا یقین ہٹا دے اور تیرا یقین بنا دے. اور نمبر 3 اللہ میں کسی سے نہ مانگو صرف تجھ سے مانگو. اے رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا. ارے چاروں کلمے, چاروں لائن کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ. بھئی یہی تو مطلب نکلا. اب کلمہ پڑھ لے یا یہ دعا پڑھ لے سب برابری تو ہو گیا. اس لیے آج سے کون کون تیار ہے پہلے کام کے لیے؟ بالکل یقین بنا دیں گے. کچھ بھی کام ہوگا تو کس سے مانگو گے؟ ہاں بالکل پکی بات. تو میں آگے چلا. ہاں سلیمان بھائی بس کرو کیا اور بتاؤ. یقین ہے نا بالکل؟ چلو گردن جھکا دو, گردن جھکا دو, سب گردن جھکا دو. اگر اللہ پر بھروسہ ہے تو گردن جھکا دو. میری زبان پر اللہ بولو, آپ سب کی زبان پر بھی اللہ. شروع کرے شروع کرے. اللہ 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 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بھائی ایک کام کے لیے سب تیار نا؟ لا الہ الا اللہ. چلو آ جاؤ. دوسرا کام میں نے کل نانی نرولی میں ہمارے بھائی بھی بیٹھے تھے, سب یہی 3 باتیں بتائی تھی لیکن واقعی الگ بتائے تھے. آج بھی 3 باتیں بتاؤں گا. پہلی بات کے لیے کون تیار؟ بولو لا الہ. آواز نہیں آ رہی. پورا مجمع لا الہ. اور بلند آواز سے لا الہ. تیار نا؟ بالکل پکا. بہت آہستہ آہستہ بولتے ہیں آپ لوگ. نہیں بولو تو بند کر دو. ہو گیا تھا ٹائم اوور. سلیمان بھائی جتنا کھایا اتنا ہو گیا. اب اوور ٹائم جانا ہو تو بولو. میرے کو آج تکلیف ہے دانتوں میں. میں بہت کم کھایا. میرے کو ایسا لگا سلیمان بھائی بولے گا آدھے گھنٹے میں بات ختم کر دینا. لیکن یہ لوگ نہیں بولے. جتنے یو کے والے بیٹھے ہمارے قاری یعقوب صاحب, یہ لوگ تو ہمارا ٹکٹ وصول کرتے ہیں پورا. اس کا بالکل چورا چورا کر دیتے ہیں. اور قاری یعقوب صاحب, آپ یعقوب صاحب نہیں, آپ بھی چھوٹے رستم نکلے. میں کتنی مرتبہ ان کے گھر کے پاس گیا, ڈیوز بری میں دارالعلم کے پاس رہتے نا.
लेकिन आप पहली मरतबा जब ये मुसल्ले पर खड़े हो ईशा की नमाज पढ़ाने और इतने अच्छे अंदाज में इन्होंने पहली रकात में वस्तमाई व तारीख और दूसरी रकात में इन्ना अनज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र पढ़ा, तो मैं सोचते रह गया कि मैं यूके जाता हूँ, कभी मैंने नहीं सुना, आज खरोड़ में आके मैंने इनको सुना। मेरे को यूके जाते जाते 20-22 साल हो गए, तो 20-22 साल का एक छुपा रुस्तम आज बाहर निकला, ऐसा लगता आज ही पैदा हुआ। और अभी मैंने कहा इनको भाई कुरान पढ़ो, कहते थे अब ये तो भाई ये बोल के बैठ गया, मैं ये बोल के बैठ सकता था। अल्लाह ताला इनकी उम्र में खूब बरकत अता फरमाए। अल्लाह ने ऐसे प्यारे प्यारे उलमा ये जमीन के ऊपर, एक कुरान अच्छा पढ़ने वाला कितनी बड़ी नेमत वाला होता मालूम है आपको? एक आदमी सूरह फातिहा मोहब्बत के साथ पढ़ता है ना जमीन पे, अल्लाह ताला कहता है मैं 40 साल के लिए उस बस्ती से अल्लाह के आज़ाब को दूर कर देता है। अल्लाह 40 साल के लिए आज़ाब को दूर कर देता है एक सूरह फातिहा पर। खैर मेरे प्यारे दोस्तों, हाँ, हमको 3 काम करना, तो तैयार हो ना भाई, तैयार हो ना? सुलेमान भाई क्या मसला क्या है? अरे हाँ बोलो ना, तैयार हो ना? पूरा मजमा बोलो ना। पहला काम ला इलाहा, यानी जोर से बोलो ला इलाहा, बल्कि सब साथ में बोलो कुल हुवल्लाहु अहद, पढ़ो पढ़ो कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता मेरा नबी कुल, मेरा नबी ऐलान कर दे हुवल्लाहु अहद, बोलो जोर से अल्लाह एक, अल्लाह समद, वो किसी का मोहताज नहीं, न जना लम यलिद वलम यूलद, न जना गया वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये कुल वल्लाहु अहद पढ़ोगे इंशाअल्लाह? अरे अभी आपने पढ़ी, ऐसे पढ़ोगे इंशाअल्लाह। एक बात आपको बताओ, आपका दिल खुश हो जाएगा। मौलाना अब्दुल हक साहब, ये रिवायत इतनी प्यारी रिवायत है। एक मरतबा क्या हुआ मालूम? एक मरतबा हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे, भाई सब इधर देखे, एक मरतबा हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे और सहाबा किराम का मजमा बैठा है और साइलेंट। अच्छा बताओ, हमारे नबी के सामने किसी के बोलने की हिम्मत होए? चुप, साइलेंट, खामोश। अल्लाह के रसूल बैठे, एक साहबी ऐसा कोने में बैठे हैं और क्या करते मानो, कुल अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। वो साहबी वहां कोने में पढ़ रहे, हमारे नबी के कान मुबारक में आवाज आई, हमारे नबी ने क्या फरमाया? वजबत वजबत वजबत। क्या मतलब? जा मिल गया, अरे मिल गया, अरे तुझको मिल गया। अरे वो साहबी खड़े हो गए, वमा वजबत, अल्लाह के रसूल मेरे को क्या मिला? अरे हमारे नबी ने कहा तूने कुल वल्लाहु अहद पढ़ा, तेरी कुल वल्लाहु अहद पूरी नहीं हुई, उससे पहले अल्लाह ने तेरे लिए जन्नत को वाजिब कर दी। ये कुल वल्लाहु अहद पे जन्नत मिल जाती। बोलो ना ला इलाहा इल्लल्लाह पे, तो पढ़ो ना मेरे साथ में, पढ़ो मोहब्बत के साथ पढ़ो कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। तो चलो पहला काम हो गया, आ जाओ दूसरे काम पे आ जाओ इंशाअल्लाह। आ जाए ना दूसरा काम है तन मन धन सब मुस्तफा पर कुर्बान। कौन तैयार है? रबीउल अव्वल महीना है, हमारे नबी का आना भी और हमारे नबी का बोलो ना आना भी। और कौन कौन तैयार है? पूरा मजमा साथ में बोले मुस्तफा का दामन। नहीं जरा बुलंद आवाज से बोलो ना मुस्तफा का दामन, और बुलंद आवाज से मुस्तफा का दामन। हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी, अरे बोलो ना हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी, हमारे पैगंबर से बढ़कर कोई पैगंबर। अरे आप लोग नहीं बोलते जाओ, अल्लाह बहुत देगा, आप नहीं बोलते जाओ, पूरा मजमा मेरा साथ देगा। हमारे आका से बढ़कर कोई आका, बोलो नहीं, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी नहीं, हमारे पैगंबर से बढ़कर कोई पैगंबर नहीं। हमारा नबी वो नबी बोलो, हमारा नबी वो नबी उंगली मुबारक से इशारा करे चांद के 2 टुकड़े हो जाए। सुभान अल्लाह। होता कि नहीं होता? क्या है? देखो बोलो ने क्या है? चांद। इशारा करो, एक उंगली से नहीं, दोनों हाथ से इशारा करो, कुछ होगा इसको? अरे होगा, पूछो ना चांद को, पूछो मेरे नबी ने इशारा किया तेरे 2 टुकड़े हो गए। हम लोग कारी अहमद अली इशारा करता तेरे टुकड़े काहे को नहीं होते, तो वो चांद जवाब देता है अल्लाह ने मेरे को कारी अहमद अली का नहीं, अल्लाह ने मेरे को मुस्तफा का गुलाम बनाया है। ये चांद किसके इशारे पे? बोलो ना किसके इशारे पे? तो पूरा मजमा साथ में बोले ना, साथ में बोले। आजकल हम लोगों का मामला कैसा मालूम आपको? मुफ्ती अब्दुल्ला, मौलाना अब्दुल्ला साहब, मैं एक बात बताऊं, मेरा एक दोस्त मेरे को मिला,
पुराना दोस्त है, पुराना दोस्त। मेरे को क्या बोलता मालूम, एक पिक्चर देख के आया, क्या कारी साहब तेरे को भी देखने जैसा, हाँ मेरे को दावत देता, तेरे को भी, मैंने कहा मेरे को, अरे कारी साहब देख तो सही, दिल अकल हैरान हो जाए। तो मैंने सोचा ऐसा कौन सा पिक्चर देखा था कि मेरे को भी देखना पड़े, मेरे को भी दिल में हुआ कि चलो। तो मैंने उसको कहा लेकिन है क्या उसमें, कुछ अच्छा हो तो चलो मैं भी आओ। तो कहता अरे हीरो जो था ना, हीरो वो 14 माले की बिल्डिंग से कूदा। कितने माले की बिल्डिंग से, ये मैं आपको 10 साल पहले की बात कर रहा हूँ। मेरे को कहता कि 14 माले की बिल्डिंग से हीरो कूदा और चारों तरफ से दुश्मन थे, सब गोली बरसा रहे थे, लेकिन यूं भागा निकल। तो मैंने कहा अल्लाह, 14 माले की बिल्डिंग से तो कूदा और फिर भागा और चारों तरफ से गोलियों की बौछार, और वो तो मैं तड़केश्वर में रहता था उस जमाने में, मैं तड़केश्वर में रहता था, तो मेरा भी ऐसा बंगला। तो मैंने उसको एक काम कर, जा मेरी टेरेस पे जा, मार खुद, हाँ खुद ही मार। तो कहता है कारी साहब क्या बात करते हो, पाँव नहीं टूटेगा? मैंने कहा उसका 14 माले से नहीं टूटा, तेरा 1 माले से टूट जाएगा। मेरे को कहता है वो तो पिक्चर है, वो तो ऐसा ही एक्टिंग करता था। मैंने कहा तेरे से बड़ा पावली कौन होगा, वो एक्टिंग करता था तो उसकी टिकट खरीदता है, वो मेरे को दावत देता है। अरे वो ढोंग करता है, वो ढोंग करता है, वो पर्दे के ऊपर ढोंग करता है तो तेरे को अच्छा लगा, और हमारे नबी ने हकीकत बताई वो समझ में नहीं आई। मैं कसम खाऊं तो गलत नहीं होगा, हमारे नबी के हमारे ऊपर बहुत एहसान है। ये रबीउल अव्वल महीना है तो मेरे को बोलने दो, बोलूं भाई, तकलीफ बहुत है, दुआ तो अल्लाह मेरे को शिफा दे दे भाई, लेकिन आप बोलो मैं बोलूं। हमारे नबी, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे नबी के सदके हमको क्या मिला। आप सुनने वाले हो तो मैं बोलूं, नहीं तो जाने दो। मैं बड़ी बड़ी चीज बताऊंगा, हमारे नबी के सदके हमको 5 चीजें मिली। पूरा मजमा साथ में बोलो, कितनी चीजें मिली? ऐसे तो बहुत कुछ मिला है, मैं आपको बता रहा हूँ हमारे नबी के सदके हमको क्या मिला। आपको मालूम है हजरत आदम थे ना, हजरत आदम, हाँ बोलते थे ना, हाँ बोलते थे, हजरत आदम नबी थे। पूरा मजमा बोलो, हजरत आदम नबी थे। उनके बेटे हजरत शीश, साथ में बोलो, उनके बेटे हजरत शीश वो भी नबी थे। वो घर कितना मुबारक होगा, अब्बा की तरफ नजर करो तो भी नबी, बेटे की तरफ नजर करो तो भी, अरे वो घर कितना मुबारक होगा, अब्बा आदम नबी, बेटे हजरत शीश वो भी। एक मरतबा हजरत आदम है ना, एक मरतबा हजरत आदम अलैहिस्सलाम, ये बहुत सुनने जैसा, 5 चीजें सुन लो और याद करके जाना। एक मरतबा हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा मालूम, ये बेटा शीश, ये बेटा शीश, आखिरी नबी जो आएंगे ना मोहम्मद, वो बहुत शान वाले, आजमत वाले, इज्जत वाले, करामत वाले, शराफत वाले, मनकबत वाले। यानी हजरत आदम ने किनकी तारीफ की, हमारे नबी मोहम्मद। तो हजरत शीश जो थे ना, शीश, उनके चेहरे का रंग बदल गया। कहा अब्बा आपको जब भी देखो मोहम्मद 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 की तारीफ करते, हालांकि वो भी नबी है। अब्बा आप भी नबी है और मैं भी नबी हूं भाई, नबी होने में तो हम सब बराबर है। आदम आप भी नबी, हजरत शीश ने कहा मैं भी नबी, और आने वाले मोहम्मद भी नबी, तो नबी तो हम सब है। फिर आपकी जबान पर मोहम्मद 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 क्यों? सुनना हजरत आदम ने क्या कहा, बेटे शीश सुनो, जब तूने सवाल पूछ ही लिया तो मैं जवाब दे दूं। हजरत आदम ने जो जवाब दिया, हजरत आदम ने कहा बेटा, ए बेटा, बेटे का नाम जोर से बोलना, बेटे का नाम। हजरत आदम ने क्या फरमाया, बेटे शीश, ए बेटे शीश, तेरे अब्बा से एक गलती हुई थी। बोलो हजरत आदम से हुई थी कि नहीं हुई थी? एक चूक हो गई थी ना, अरे बोलो हुई थी ना। अल्लाह ने कहा था वो दरख्त के करीब, अरे कहा था ना दरख्त के करीब मत जाना, मगर हजरत आदम चले गए। कुरान करीम में फरमाया वला तक़रबा हाज़िहि शजरत फतकूना मिनल ज़ालिमीन। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया था ये दरख्त के करीब मत जाना। अब पूरा मजमा सुनना, हजरत आदम क्या फरमाते, एक एक जुमले को सुनना, दिल में लगेगा। हजरत आदम ने फरमाया बेटे शीश, ओ बेटे शीश, तेरे अब्बा से कितनी गलती हुई? जोर से जोर से। हजरत आदम ने कहा सुनना, हजरत आदम ने कहा बेटा शीश, मुझसे एक गलती हुई, लेकिन जब मैं जमीन पर आया अल्लाह ने मेरे कपड़े भी उतार दिए। अल्लाह ने मेरे कपड़े, हजरत आदम के मिस्टेक कितनी हुई थी? अल्लाह ने मेरे कपड़े, सुनना सुनना, ये जुमला सुनना, पहला स्टेटमेंट सुनना। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया बेटे शीश,
जन्नत से जमीन पर आया, अल्लाह ने मेरे कपड़े उतार दिए। हजरत आदम ने फरमाया मुझसे एक गलती हुई, लेकिन अल्लाह ने मेरे कपड़े उतार दिए। आने वाला आखिरी नबी मोहम्मद मुज्तबा, अल्लाह उनसे इतनी मोहब्बत करे कि उनके उम्मती गलती पर गलती करे, अल्लाह कपड़ा नहीं उतारता बल्कि कपड़ों पर कपड़े इनायत करता चला जाता। सही के नहीं मेरे दोस्तों, सही के नहीं? हजरत आदम से गलती हुई, अल्लाह ने कपड़े। अच्छा आप लोग ऐसा मेरे को मत देखो, कुरान में लिखा है कि हजरत आदम से गलती हुई तो अल्लाह ने कपड़े। कुरान में ये उलमा बैठे, 8वां पारा, बोलो कौन सा पारा? 8वां पारा कुरान करीम में लिखा, फदल्लाहुमा बिगुरूर फलम्मा ज़ाक़ा अश-शजरा बदत लहुमा सवातुहुमा व तफ़िक़ा यख़सिफ़ानि अलैहिमा मिन वरक़िल जन्नह। अल्लाह ताला फरमाते मैंने आदम के कपड़े उतारे। अरे जाहिर बात है हज़रत आदम जन्नत में थे, जन्नत के कपड़े पहने थे, जमीन पे आए, अल्लाह ने कपड़े उतारे। अरे किसी को भी शर्म आवे, हज़रत आदम ने दरख्त के पत्ते लिए और अपने ऊपर बांध दिए, लेकिन हज़रत आदम ने कहा बेटा शीश एक गलती हुई, अल्लाह ने कपड़े उतारे। आखिरी नबी के उम्मती हम गलती पर गलती करे, अल्लाह ने कभी कपड़े उतारे, बल्कि कपड़े पर पहले 2 जोड़ थे, अभी 4, फिर 8। ये कहता एक कपाट खोल के देखता है कौन सा पहनो, लाल वाला, ब्लू वाला, येलो वाला, काला वाला, बोलो होता कि नहीं होता? इसका मतलब ये निकला कि एक गलती पर खुदा कपड़े उतार सकता है, लेकिन नबी के सदके अल्लाह ने हमारे कपड़े उतारे नहीं। इसका मतलब ये हुआ आज जो कपड़े हमने पहने हैं ये हमारा नहीं है, ये मोहम्मद का सदका है। बोलो बोलो बेशक बोलो, ये कपड़ा अपना नहीं है। हाँ कोई 100 रुपया मीटर वाला पहन ले, 500 रुपया मीटर वाला पहन ले, कोई तेरे कपड़े की तारीफ करे, लेकिन अल्लाह को हाजिर नाजिर रखकर बता ये कपड़ा तेरा नहीं है। एक गुनाह पर खुदा कपड़ा उतार देता है, तेरे कपड़े उतरे नहीं, मेरे कपड़े उतरे नहीं, इसका मतलब ये कपड़ा मेरा नहीं है, मोहम्मद का सदका है। ये पहली बात हो गई। चलो दूसरी बात पे चलेगी, बोलो चलेगी इंशाअल्लाह। हजरत आदम ने क्या फरमाया? हजरत आदम ने फरमाया ओ बेटा शी, ओ बेटा शी, मेरे से कितनी गलती हुई? बोलो ना कितनी गलती हुई? हजरत आदम ने रोते रोते कहा बेटा शी एक गलती हुई, अल्लाह ने घर से बेघर कर दिया, अल्लाह ने घर से बेघर कर दिया, मेरा कोई घर नहीं, अल्लाह ने घर से बेघर कर दिया। मैं तो जन्नत में था, अल्लाह ने मेरे को जमीन पे उतार दिया, और वो भी श्रीलंका में उतारा, और वो भी कोलंबो पहाड़ पे उतारा। अरे कहाँ जन्नत और कहाँ श्रीलंका, कहाँ जन्नत और कहाँ कोलंबो पहाड़। हजरत आदम ने कहा सुनना, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया बेटे शीश मुझसे एक गलती हो गई, अल्लाह ने घर से बेघर कर दिया, लेकिन आखिरी नबी मोहम्मद मुज्तबा इनके उम्मती गलती पर गलती करे, अल्लाह घर से बेघर नहीं करता बल्कि घरों पर घर और दुकानों पर दुकान अता करता। बोलो सही है कि नहीं? अरे सही है कि नहीं? हजरत आदम से गलती हो गई, अल्लाह ने घर से। कुरान करीम में फरमाया, कुरान करीम में इहबितू बागुकुम लिबागिन आदू व लकुम फिल अर्दि मुस्तक़र व मताउन इला हीन। हजरत आदम ने फरमाया बेटे शीश एक गलती हो गई, अल्लाह ने घर से बेघर कर दिया, और आने वाले आखिरी नबी मोहम्मद के उम्मती गलती पर गलती करे, अल्लाह ने हमको घर से बेघर किया नहीं, बल्कि पहले एक ठीक है मौलाना चलो ना दुआ के लिए चलो, तो मौलाना कहता अभी गए साल तो अपन दुआ करके आए, कहता मौलाना दूसरा घर ले लिया। कौन सा घर ले लिया? दूसरा घर। फिर तीसरे साल फिर आता है कारी साहब ये टाइम तो दुआ के लिए आपको आना ही पड़ेगा। अरे 2 मरतबा तो दुआ के लिए आया, तो कारी साहब वो दुकान भी ले लिया, वो दुकान भी ले लिया, और इतना अच्छा है मौलाना अपन बोलेंगे ना क्या अच्छी दुकान है मेरे को दे देना, तो क्या बोलेंगे मौलाना तुम्हारी देना, अपन भी खुश तुम्हारी देना। बोलो ऐसा होता कि नहीं होता? घर पे घर, दुकान पे मौलाना के पास दुआ पे दुआ, दुआ पे दुआ, दुआ पे दुआ, दुआ पे दुआ, हो रहा कि नहीं हो रहा? कसम खा के बोलो अगर गुनाह को अल्लाह देखा होता तो हमको भी अल्लाह घर नहीं देता, लेकिन मालूम हुआ इसका मतलब ये निकला कि जितने घर अपने पास है, जितनी बिंगा जमीन अपने पास है, जितना एकड़ जमीन अपने पास है, जितना खेत अपने पास है, जितनी दुकान अपने पास है, अल्लाह को हाजिर नाजिर रखकर बता दे वो हमारा नहीं है, मोहम्मद का सदका है। बोलो किसका सदका है? मोहम्मद। तो मोहम्मद के सदके कपड़े मिले,
मोहम्मद के सदके घर और अब तीसरी बात पे आ जाओ। हज़रत आदम ने रोते रोते कहा, ए बेटा शीश, मेरे से एक गलती हो गई, अल्लाह ने मेरे को और मेरी बीवी को जुदा कर दिया। बोलो जुदा हुए कि नहीं हुए? अरे जोर से बोलो ना, जुदा हुए कि नहीं हुए? हजरत आदम को अल्लाह ने श्रीलंका में उतारा और माँ हवा को अल्लाह ने जद्दा में उतारा। 300 साल जुदा किया अल्लाह ने, 300 इयर्स। कितने साल जुदा किया अल्लाह ने? हजरत आदम क्या फरमाते सुनना, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेटे शीश, तेरे अब्बा से एक गलती हो गई। हजरत आदम कहते मुझसे एक चूक हो गई, अल्लाह ने मेरे और मेरी बीवी में जुदाई कर दिया। 300 साल तक अल्लाह ने जुदाई कर दिया। लेकिन हजरत आदम कहते आने वाला आखिरी नबी मोहम्मद मुजतबा, इनके उम्मती गुनाह पे गुनाह करे, अल्लाह कभी मियां बीवी में जुदा नहीं करवाता। करवाया अल्लाह ने? अरे बोलो अल्लाह ने करवाया। हम कितने गुनाह करते, पहले गुनाह पे अल्लाह मियां बीवी को अलग करता, यहाँ गुनाहों का ढेर लग गया, अल्लाह ने जुदा। अरे बोलो अल्लाह ने जुदा कितने? तो इसका मतलब हुआ कि आज अपने को बीवी मिली है और बच्चे मिले हैं, वो भी मोहम्मद का सदका है। ईमान से बोलो, 3 बातें हुई कि नहीं हुई? कपड़ा किसका सदका? जोर से बोलना, कपड़ा किसका सदका? मोहम्मद का। ये दुकान मकान किसका सदका? ये जमीन खेत किसका सदका? मोहम्मद का। और ये भी कह दे कि बीवी बच्चे जो आज मुझसे मोहब्बत करते हैं, वो भी मोहम्मद का सदका। कितनी चीजें हो गई? मैं कितनी चीजें बताऊंगा? इसमें चौथी चीज तो बहुत अजब है। हजरत आदम से कितनी चूक हुई? हजरत आदम ने बहुत रोए, कहा बेटा शीश, मेरे से एक गलती हुई, अल्लाह ने आसमान जमीन पे मेरे गलती का ढिंडोरा पीटा। अल्लाह ने सबको बता दिया आदम से गलती हुई। बोलो बताया कि नहीं बताया? हज़रत आदम अपने बेटे को कहते हैं बेटा शीश, फरिश्तों को भी पता चल गया कि मैंने गलती किया, नबियों को भी पता चल गया कि मैंने। हज़रत आदम कहते बेटा शीश मेरी गलती। और सही में अल्लाह ने आसमानों पे फरिश्तों को बताया। बल्कि मैं आपको कहूं तो तौरात में लिखा है हज़रत आदम से चूक हो गई, इंजील में लिखा है हज़रत आदम से चूक हो गई, ज़बूर में लिखा है हज़रत आदम से चूक हो गई, हमारे कुरान में लिखा है हज़रत आदम से चूक हो गई। कुरान करीम में अल्लाह ने फरमाया वासा आदम रब्बा फगवा। अल्लाह ने कुरान में भी बताया, सुनना, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने रोते रोते कहा बेटा शीश, मुझसे एक गलती हो गई, अल्लाह ने आसमानों पर मेरी खबर पहुंचा दी, अल्लाह ने जमीन पर मेरी खबर पहुंचा दी। ए बेटा शीश, एक गलती हो गई, अल्लाह ने मेरी गलती का ढिंडोरा पीट दिया। लेकिन आने वाला आखिरी नबी मोहम्मद मुजतबा, इनके उम्मती गलती पर गलती करे, अल्लाह ऐसा छुपाता कि करीब में बैठने वाले को भी पता न चलता। सच बोलो, सही है कि नहीं? ये मेरे बाजू में बैठे, इनको नहीं मालूम कारी अहमद ने क्या गुनाह किया। ये बैठे, इनके बाजू में मौलाना अब्दुल्ला बैठे, उनको नहीं मालूम कि इन्होंने क्या गुनाह किया। किसी बाजू में बैठने वाले को नहीं मालूम कि क्या गुनाह किया। हज़रत आदम कहते बेटे शीश, एक गलती किया, 7 आसमानों में खबर चली, और आखिरी नबी का उम्मती गलती पर गलती करे, अल्लाह किसी को बताता नहीं। मालूम हुआ कि आज अगर हमारा गुनाह छुपा है तो अपना कमाल नहीं है, मोहम्मद का सदका है। कितनी बातें हो गई? आखिरी बात सुन लो, हज़रत आदम से चूक हुई ना, अच्छा उसके बाद रोए कि नहीं रोए? अरे जोर से बोलो, रोए कि नहीं रोए? कितना रोए? 300 साल। फबका आदम सलासमिअति सिनीन। हज़रत आदम कितने साल रोए? 300 साल रोए। हज़रत आदम क्या कहते सुनो, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम फरमाते मेरा बेटा शीश, मुझसे चूक हो गई, मुझसे गलती हो गई, मैं 300 साल रोया। पूरा मजमा बोले मैं 300 साल रोया। हज़रत आदम फरमाते बेटा शीश, मुझसे एक गलती हो गई, मैं 300 साल रोया। आने वाला आखिरी नबी, इनके उम्मती गलती पर गलती करे, अल्लाह 300 साल नहीं रुलाता, बल्कि आंख से आंसू निकलता, गाल पे पहुंचता, अल्लाह कहता जा मेरे बंदे, मैंने तेरे तमाम गुनाहों को माफ कर दिया। हमको कहा अल्लाह रुलाता, बल्कि खाली हाथ उठाया, अल्लाह अल्लाह मेरे को माफ कर दे, और आंसू यहाँ निकलता ना, यहाँ भाई आंख से कहाँ निकला? गाल पे। अल्लाह फरिश्तों को कहता मेरे नबी, मेरा आखिरी नबी का उम्मती रोता है, ए फरिश्तों गवारे, मैंने इसके सब गुनाहों को माफ कर दिया। तो मेरे दोस्तों, इसका मतलब अगर गुनाह भी माफ होते हैं तो मोहम्मद के सदके माफ होते हैं। बताओ, ये 5 बातें समझ में आ गई तो मेरा साथ दे देना, बहुत बड़ी बात हो जाएगी, बहुत बड़ी बात हो जाएगी। पूरा मजमा मेरा साथ दे देना, साथ में बोलो अगर अल्लाह ने हमें कपड़े दिए तो बोलो ना किसका सदका? जोर से जोर से जोर से जोर से। आपको सिर्फ मोहम्मद बोलते जाना, अपना काम हो जाएगा इंशाअल्लाह। पूरा मजमा, अगर अल्लाह ने हमें कपड़े
پورا مجمع بولے کس کا صدقہ؟ اللہ نے آپ کو گھر دیا، دکان دیا، کھیت دیا، زمین دیا، بولو کس کا صدقہ؟ اللہ نے بیوی دی، بچے دیے، بولو کس کا صدقہ؟ ارے ہم گناہ کرے، قریب بیٹھنے والے کو پتہ نہ چلے یہ گناہ پہ پردہ رکھے، بولو نہ کس کا صدقہ؟ محمد کا۔ اگر ہم گناہ کرے اور اللہ گناہ معاف کر دے وے، بولو نہ کس کا صدقہ؟ محمد کا۔ بولتے جاؤ کس کا صدقہ؟ محمد کا۔ ہمیں جو کلمہ ملا لا الہ الا اللہ، اس میں کس کا نام؟ بولو محمد کا۔ ہماری اذان جو ہمیں ملی اس میں کس کا نام؟ محمد کا۔ ہمیں اقامت ملی اس میں کس کا نام؟ محمد کا۔ ہمیں قرآن ملا، بولو اس میں کن کا نام؟ محمد۔ ارے زبور ملی تو نام محمد، انجیل ملی تو نام محمد، ارے تورات ملی تو نام محمد۔ ارے خدا نے عرش کو پیدا کیا، عرش کے پائے پر اللہ نے محمد لکھ دیا، اللہ نے ساتوں آسمانوں پر محمد لکھ دیا، اللہ نے جنت کے درختوں پر محمد لکھ دیا، اللہ نے جنت کے درختوں کے پتوں پر محمد لکھ دیا، اللہ نے جنت کے پہاڑوں میں محمد لکھ دیا، فرشتوں کی پیشانی پر اللہ نے محمد لکھ دیا، حور کے گلے پر اللہ نے محمد لکھ دیا۔ یہ سب کچھ صدقہ ملا، بولو نا کس کا صدقہ مل گیا؟ محمد کا مل گیا۔ ہر جگہ جگہ ہمیں محمد نظر آیا، بولو ہر جگہ جگہ ہمیں محمد نظر آیا، مگر کھروڑ آئے تو کھروڑ کے جوانوں کے چہروں پر کس کا نام نظر آیا؟ یہاں ٹائر پنچر ہوتا ہے، سب محمد کے صدقے ملا، چہرے پہ کروڑ والا۔ ہاں بولے عبداللہ میرے کو تو چشمے سے سب دکھتا ہے، دیکھو کیا چکنا چکنا گھال، لوکنگ اسمارٹ، کاری آنکھوں سب دیکھا کہ دیکھا چامن چامن فیس، دیکھو دیکھو کیسے۔ معاف کرنا بھائی، یہاں بہت سلیمان بھائی یہاں کروڑ میں بہت سے لوگوں کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے، تو میں معاملہ کلیئر کروں گا، اور نہیں غصے ہوئیں گے کاری مجھے داڑھی 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 کرتا ہے۔ بھائی کروڑ کے پانی میں کوئی پرابلم تو نہیں ہے؟ ایسا پانی ڈالو اور دھڑ سے بال گر جاتے ہو، کاری صاحب ایسا پرابلم تو نہیں ہے؟ ارے بولو نا پانی میں پرابلم تو نہیں ہے نا؟ تو بھی داڑھی کیوں نہیں ہے؟ انشاءاللہ دعا کرو آ جائیے، صرف دعا سے نہیں ہوتا، دوا بھی کرنی پڑتی، کریں گے بولو نا کریں گے داڑھی۔ ایک بات چلو میں اپنی بات کیا کروں، یہ جتنے بیٹھے جتنے آپ لوگ جتنے بیٹھے، ارے کوئی بھی دھرم کا پالنے والا، آج اللہ کی قسم ہر ایک کو معلوم ہے جو مرد ہوتا ہے نا، مرد اس کو داڑھی آتی ہے، عورتوں کو داڑھی، پورا مجمع بولے گا عورتوں کو داڑھی، ارے سب کو معلوم ہے، زور سے بولو نا، مردوں کو داڑھی آتی ہے، عورتوں کو داڑھی، جس کو داڑھی آوے وہ آگے بولو تو میرے کو کھانا ابھی ہضم ہو جائے۔ کیوں میرے کھروڑ والے، کیا فائدہ ہوا؟ ہاں نبی کے چہرے کو توڑ کے کیا ملا؟ اے ربیع الاول کا مہینہ ہے، بولو نا نبی کے چہرے کو توڑ کے کیا ملا؟ کون سی دنیا مل گئی؟ کون سی آخرت مل گئی؟ میرے دوستوں نبی کے چہرے کے ساتھ کائے کو مذاق کرتے ہو؟ کیوں مذاق کرتے ہو میرے دوستوں؟ نبی کے چہرے کے ساتھ کیوں مذاق کرتے ہو میرے دوستوں؟ آج بڑے بڑے گناہ میں ہم لوگ پڑے ہیں۔ آپ کہتے ہیں نا کھروڑ قاری صاحب کو بلاؤ، قاری صاحب کو بلاؤ، اب قاری صاحب آ گیا، اب پورا نہیں ماننا میرے دوستوں، میں قسم کھا کر کہتا ہوں آج ہم اتنے بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں، جو زینا گندی بازاروں میں نہیں ہوتا آج ہمارے موبائل پہ ہو رہا ہے، جو سٹا اور جوا گیملنگ جو بڑے بڑے کلبوں میں نہیں ہوتا وہ ہمارے موبائل پہ ہوتا ہے، جتنا ننگا پنا ہمارے موبائل پہ ہوتا ہے، جتنا جوا ہمارے موبائل پر ہوتا ہے، ارے واٹس ایپ پہ ہوتا ہے، فیس بک پہ ہوتا ہے، وائی فائی شروع کر کے نیٹ پہ جاتا ہے، کمپیوٹر پہ جاتا ہے، لیپ ٹاپ پہ جاتا ہے، اللہ کی قسم یہ موبائل نہیں، یہ ایسا لگتا جہنم کا ٹکڑا ہے جو موت کے وقت کلمہ چھین کے چلا جائے گا۔ بولو ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ مولانا عبداللہ صاحب موبائل پہ غیبت، ہمارے نبی کہتے تھے پیٹھ پیچھے کسی کی ایک مرتبہ برائی کرو، کتنی مرتبہ؟ پیٹھ پیچھے کسی کی ایک مرتبہ برائی کرو، ہمارے نبی کہتے زنا سے بدتر ہے۔ کس سے بدتر ہے؟ آج واٹس ایپ پہ کیا ہوتا؟ اس کی بات، اس کی بات، اس کی لڑکی بھاگ گئی، اس کا لڑکا بھاگ گیا، وہ ایسا کیا، اس پہ الزام، اس پہ تہمت، اس پہ بہتان، ایک آدمی واٹس ایپ پہ ڈالا، اس نے 10 پہ ڈالا، 10 نے 40 پہ ڈالا، 40 نے 80 پہ ڈالا، 80 نے 200 پہ ڈالا، ارے قیامت میں اللہ کہے گا
एक जीना नहीं 200 जीना का तुझे जवाब देता है। कहां से लाके जवाब देता? क्यों मेरे दोस्तों, मोबाइल बनाने वाले ने इसको टेक्नोलॉजी के मैदान में बनाया ताकि काम जल्दी हो जाए। हमने उसमें चोरी का काम शुरू किया, मोबाइल में चोरी का काम, मोबाइल में पीठ पीछे बुराई का काम, अरे मोबाइल के अंदर लोगों पे तोहमत लगाना, अरे मोबाइल में लोगों पे इल्जाम लगाना, अरे मोबाइल में लोगों पे बोहतान बांधना, अरे ये मोबाइल को लेके पूरी शरीयत का मजाक उड़ाना, अरे ये मोबाइल को लेके नंगी नंगी औरतों की तस्वीर लेना, अरे ये मोबाइल लेके जुआ और सट्टा खेलना। अल्लाह की कसम मेरे दोस्तों, मोबाइल से इतनी मोहब्बत हो गई कि नमाज के बारे में तो कभी सोचता भी नहीं है। ये हमारे जवान क्या करते, क्या करता, मैं मना नहीं करता, खरोड़ है माशाल्लाह, एजुकेशन नॉलेज का इलाका है, मैं मना नहीं करता, लेकिन बहुत सारे जवान ऐसे जो कुछ नहीं करते, सही में, अरे आपको सब कुछ भी नहीं। इनको पूछो, ये हमारे जवान को पूछो, क्या है भाई, हाँ तू इतना जवान हुआ, 18 साल का, 20 साल का, 22 साल का जवान हो गया, तू पढ़ा क्या पढ़ा, हाफिज बना? कहेगा नहीं, हाफिज नहीं बना, कारी नहीं बना, आलिम नहीं बना, मौलवी नहीं बना, मुफ्ती नहीं बना, मुहद्दिस नहीं बना, मुफस्सिर नहीं बना। उसको पूछो क्यों नहीं बना? कहता मौलाना बनने वाला था, लेकिन मौलाना ने बहुत मारे ना तो पढ़ना, मौलाना ने बहुत मारे तो पढ़ना। और मौलाना भी अजीब होते, धड़ाधड़ देते, धड़ाधड़ देते, धड़ाधड़ देते, और मौलाना ने मारा होगा तो पढ़ना। तो हम कहते ठीक है भाई, हम मौलाना, हम कसूरवार है, हमने मारा तो तू नहीं पढ़ा, लेकिन ये बता, तू हाफिज नहीं बना, कारी नहीं बना, तो ये बता तू डॉक्टर बना, लॉयर बना, वकील बना, आर्किटेक्ट बना, बैरिस्टर बना, कॉन्ट्रैक्टर बना, क्या बना? दुनिया का कौन सा नॉलेज आया? अरे मौलाना 8वीं चोपड़ी में, तो अभी करता क्या है, अभी करता क्या है, क्या करता मालूम? 2 व्हीलर, बाइक, बाइक देखा कि नहीं देखा? और बाइक भी ऐसी निकली है, पहले तो ऐसा बैठते थे, अभी तो ऐसा बैठते जैसा हवाई जहाज में बैठने जा रहा है। और सेल्फ स्टार्टर क्या करेगा मालूम है? निकलेगा, अपने घर में से निकलेगा, सुबह 10 बजे निकलेगा, ऐसा लगता है जैसा गांव का सरपंच जा रहा है, हालांकि खोखला बर्तन है, अंदर कुछ भी नहीं है, लेकिन ऐसा लगेगा गांव का सरपंच, इतना फास्ट आएगा, इतना बिजी होके आएगा, जल्दी से स्टार्ट करेगा, 18 करके निकालेगा, अरे बम्पर पे कूदाएगा, स्टन करेगा, और घूमता 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 ओटे पे आके खड़ा होगा। उसको पूछो कहां गया था? पूरा गांव घूम के आया। क्यों? ये तो मैंने भी नहीं खबर, मेरा दिल होता है इससे बड़ा, ये पावली नहीं, ये पावला है। सही बोलो, ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा? पूरा, अरे जितना अल्लाह के घर में नहीं जाता, ओ ओटे पे बैठा होता, ओटे पे बैठेंगे 4, 5, 6, 7 ऐसे ओटे पे बैठेंगे, रात को 1 बज गए, रात को 2 बज गए, ओटे पर बैठे क्या करते? कलमा पढ़ते, जिक्र करते ना, इसकी उसकी लड़की ऐसा हो गया, उसका लड़का ऐसा हो गया, अरे सब ऐसे हो गए, तो तू कुछ दूध से धुला धुलाया, तू पवित्र हो गया, अरे क्या हो गया तू भाई? बोलो ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आज सच बताओ, ये मुस्तफा का दामन है? अरे बोलो ना, मुस्तफा का दामन है? आज कौन कौन तैयार है? चलो एक बात तो हो गई थी, ला इलाहा इल्लल्लाह, दूसरी बात पे कौन कौन आने को तैयार है? बोलो मुस्तफा का दामन, जोर से मुस्तफा का दामन, जोर से बोलो ना। आजकल तो हमारे जवानों को अजीब अजीब आदतें लगी, मैं देख रहा हूँ, मालूम नहीं यहाँ गुजरात से ये गांव में क्या है, लेकिन हमारे शहरों में बहुत हो रहा है। वो मालूम नहीं वो खाते क्या? गुटखा, मावा, तंबाकू, गुटखा है ना। और खाने का तरीका मैं बताऊँ, स्टाइल वहाँ अब्दुल साहब, आप भी सोचते हो सारी सबको कैसे आ रही है? पहले कैसा खाते थे मालूम? जब शुरू में गुटखा खाता है नहीं हो, जैसे वो पानी का गिलास से उतारता हो ना, फिर उसके बाद क्या होता? गुटखा खाते खाते मुंह कैसा हो जाता? छोटा। तो फिर कैसा खाता मालूम? यूं रखेगा, और फिर एक हाथ से दरवाजा खोल और दूसरे हाथ से एंटर हो जाए, और फिर क्या होगा मालूम है? फिर और गुटखा खाएगा तो मुंह इतना छोटा हो जाएगा, डॉक्टर के पास जाएगा, अल्लाह कैंसर हो गया, अंदर का सब सड़ गया, कैंसर हो गया। तो क्या करेगा मालूम? अब कारी अहमद अली एक ताबीज दे देना। हाँ, अब ताबीज याद आई, पहले गुटखा ठोसता था तब याद नहीं आई। सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ मेरे दोस्त? मौलाना अब्दुल्ला, आपको एक अजीब बात बताऊं, एक आदमी गुटखा खाता था, तो सऊदी चला गया। कहाँ चला गया? सऊदी चला गया। अब सऊदी में जाके गुटखा खाने लगा, अब यूं गुटखा लिया, यूं किया, और उसके बाद तो इतने में पुलिस आ गई, और वो पुलिस ने देखा कि तंबाकू गुटखा, तो पुलिस ने क्या कहा? हाज़ा हराम,
वो तो अरबी में बोलेगा हरा हराम तंबाकू हराम ला युनासिब हरा हराम। तो वो आदमी वो पुलिस के गले लग गया, कहा पहली मर्तबा गुटखा खाने से पहले की दुआ मालूम हो गई। मेरे जवानों, ये सिगरेट, ये तंबाकू, ये गुटखा, ये बीड़ी इंजरियस फॉर हेल्थ। सब किताबों में लिखा है कि ये बदन को नुकसान पहुंचाता। मैं कहता हूं पहुंचाए न पहुंचाए, शरीयत ने जिसको हराम किया वो हराम है। और कयामत में अगर इसकी वजह से हमारी बॉडी को नुकसान होता है तो कयामत में अल्लाह को इसका जवाब देना पड़ेगा। बोलो देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? इसलिए भाई सब बातें चलो बहुत लंबी हो जाएगी बात, हम इस बात के ऊपर आ जाए। पूरा मजमा साथ में बोले भाई मुस्तफा का दामन नहीं छोड़, और बोलो ना हमारे नबी का सदका है कि नहीं हमारे साथ? अरे बोलो ना कपड़ा किसका सदका? बोलो बोलो किसका सदका? मोहम्मद का ये घर मकान दुकान, बोलो किसका सदका? बल्कि मेरे दोस्तों, हमारे जितने अकाबिरीन हैं, हमारे अकाबिरीन हैं, सच बताओ उन्होंने मुस्तफा का दामन थामा कि नहीं थामा? अरे जोर से बोलो ना, थामा कि नहीं थामा? मैं कसम खा करता हूँ, देखो ये हमारे मौलाना अब्दुल्ला साहब बैठे, ये अक्सर निजामुद्दीन मरकज पे रहते हैं। इनका अक्सर वक्त जो है ये, हालांकि हम साथ में पढ़ने वाले, लेकिन अल्लाह किसी को चुनता है तो ऐसा चुन लेता है। हम यहाँ कुर्सी पे बैठ गए, वो मरकज पे पहुंच गए। ज़ालिका फज़लुल्लाह, बाकी हम क्रिकेट भी साथ में खेले। हाँ ये सिक्सर बैट्समैन, हाँ ऐसा बल्ला घुमावे कि अपन भी हैरान हो जाए। आज अल्लाह ने चुन लिया भाई, अल्लाह जिसको चुनना चाहे। लेकिन आज मैं सीना ठोक कर एक बात कहता हूँ मेरे दोस्तों, मुस्तफा का दामन जो हम बोलते हैं ना थामो, आज लोग चिल्लाते मुस्तफा का दामन, बोलो बोलो मुस्तफा का दामन नहीं छोड़ेंगे, खाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दामन नहीं छोड़ेंगे, अरे गौस पाक का दामन, अरे पहले पकड़ना। आज मैं आपको बताऊं मुस्तफा का दामन क्या है। कौन कौन सुनने को तैयार है? तैयार है? देखो ये बात सुनाऊंगा फिर उसके बाद मैं आखिरी बात इंशाअल्लाह, ठीक है ना? ठीक है ना मेरे दोस्तों? आज कसम खा के कहूं तो गलत नहीं होगा, आज दुनिया में जो पूरी चलत फिरत नजर आती है दावत और तबलीग की, आती नजर आती कि नहीं आती? पूरे आलम में ला इलाहा इल्लल्लाह दावत तबलीग का काम पूरे आलम में, अरे बस्ती बस्ती, चप्पा चप्पा, गली गली, शहर शहर, नगर नगर एक दावत और तबलीग की फिक्र है। अरे अल्लाह की कसम खा के कहो, जितना दुनिया में दावत तबलीग का काम हो रहा, या दुनिया में जितने मदरसे आपको नजर आते हैं, या दुनिया में जितनी खानकाह नजर आती है, सब चलाने वाला कौन? अल्लाह। लेकिन अल्लाह ने जरिया बनाया तो एक दुबले पतले इंसान को जरिया बनाया, जिनको हम मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं। सच बोलो, हुआ कि नहीं हुआ? ये मौलाना इलियास, मोहब्बत करते हो ना? अरे हाँ या नहीं? आवाज नहीं आ रही, करते हो ना? कि आज अगर मैं कहूं तो गलत नहीं होगा, आज दुनिया में जहां जहां कलमे और जहां जहां दावत और तबलीग का काम होता, अरे दुनिया में जितने मरकज बने हैं सबके सरपरस्त हजरत मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह, जितने बड़े बड़े दारुल उलूम बने सबके सरपरस्त हजरत मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह, जितनी खानकाह बनी सबके सरपरस्त हजरत मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह। अरे वो निकले और लोगों को निकाला, तब जाकर आज हमारे बच्चे मदरसे में नजर आए, हमारे बच्चे खानकाहों में नजर आए, हमारे बच्चे दावत और तबलीग में नजर आए। दुआ करो या अल्लाह ने हिंदुस्तान को फजीलत अता फरमाई कि मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह ने बेड़ा उठाया और अल्लाह ने उसको मंजिल तक पहुंचा दिया। तो मौलाना इलियास, आज क्या होता है मालूम है? किसी आलिम को देखते हैं ना कि आराम से गाड़ी में घूमता है तो कहेंगे आटलो मोटो बोली साहब मैं गाड़ी में फर, BMW में आया, BMW में गया तो कहते मौलाना होके इतनी बड़ी गाड़ी में घूमता। मेरा दिल होता कि बोलो ये अभी अंडे खाता है, पहले डंडे खा चुका है, ये अभी अंडे खा रहा है, पहले डंडे। ये मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना अब्दुल्ला साहब आपको तो मालूम होगा, मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह दुबले पतले थे, कोई हट्टे कट्टे मोटे नहीं थे, दुबले पतले थे। पहली मर्तबा मेवात गए, बोलो पहली मर्तबा मेवात गए तो मेवात में एक बहुत हट्टा कट्टा आदमी, लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा आदमी, वो खेत में हल चला रहा है। बोलो खेत में क्या कर रहा है? हल चला रहा है। वो बेल चलते रहते ना, बेल चलते रहते, वो हल चला रहा। मौलाना इलियास उसके पास गए, चिलचिलाती गर्मी, उसके कंधे पे हाथ रखा, भाई चलो ना मस्जिद में, चलो ना दीन की बात होने वाली है मस्जिद। तो वो जो था ना हट्टा कट्टा मोटा आदमी, यूं मौलाना इलियास को देखा और कहा हाँ मस्जिद में चलो तो यहाँ कौन काम करे भाई, मस्जिद में चलो तो ये काम कौन करेगा? और ये बोल के हल चलाने लगा। मौलाना इलियास फिर उसके पीछे गए, भाई
चल ना भाई, अल्लाह के घर में चलना। तो इतनी खतरनाक गाली दी, और गाली देकर कहा बीवी बच्चे हैं अपने, बीवी है बच्चे हैं, सबका पेट भरने का। मस्जिद में तुम्हारी तरह मौलवी की तरह, मुल्ले की तरह मैं मस्जिद में जाके बैठूं तो मेरे बीवी बच्चे का पेट कौन भरेगा? वो बहुत गुस्से हुआ। मौलाना इलियास फिर गए, वो थोड़ा आगे गया ना, फिर गए, उसके कंधे पे हाथ रख, भाई चल ना। अब वो आदमी को आया, बोला आदमी को आया, उसका मोटा हट्टा कट्टा था, उसने एक तमाचा मारा। इनको हजरत मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह को तमाचा मारा, इतना जोर का तमाचा उसने मारा, हजरत गिर गए खेत में। हजरत खेत में गिर गए और बेहोश हो गए। अब जब बेहोश हो गए तो वो घबराया कि ये आदमी तो बेहोश हो गया। वो जल्दी से पानी लेकर आया और मौलाना के चेहरे पे छिड़कने लगा। बहुत देर के बाद मौलाना को होश आया तो वो क्या कहता मालूम? ओ मुल्ला जी, होश आ गया, जाओ अपने घर जाओ, घर जाओ वरना दूसरा तमाचा पड़ेगा। एक तमाचे में बेहोश हो गए, जाओ अपने घर जाओ। हजरत मौलाना इलियास उठे तो उसे कंधे पे हाथ रखा, चल मस्जिद में चल, मैं मस्जिद में चल, अल्लाह बुला रहा है, अल्लाह बुला। मालूम नहीं मौलाना ने ऐसे दर्द से बोला, उसने हल को छोड़ा। लिखा है कि मेवात से लेके कोने तक अगर सबसे ज्यादा दीन का काम किया तो इसी साथी ने मौलाना इलियास की बरकत से काम किया। ये मेरे दोस्तों, इसका नाम है मुस्तफा का। वो मार खाते थे और लोगों को मस्जिद में लाते थे। यहाँ कौन सी मार खाने का है? यहाँ कौन सी मार खाना? मैं आज आपको बताना चाह रहा हूँ, जब मौलाना इलियास की बात आ गई तो मैं बोलूँ ना, अरे बोलो ना, कौन कौन मोहब्बत करता है हजरत मौलाना इलियास? सब मैं उलमा से नहीं पूछ रहा, आप तो माशाल्लाह सब रहने वाले मरता। आप लोग ये जवानों से करते, मौलाना इलियास से मोहब्बत करते हो? अरे हाँ कि नहीं? ये दावत तबलीग के काम से मोहब्बत करते हो ना? करते हो। हजरत मौलाना इलियास के अब्बा का नाम, उलमा से नहीं आपसे पूछ रहा। अरे अभी आप लोगों ने हाथ ऊपर उठा के बोला ना मोहब्बत करते हैं, अब्बा का नाम ही नहीं माना। मेरे पास में ताबीज लेने के लिए आए, सुनना नबी भाई अपनी जवानी याद करो। सब बुजुर्गान ने दिन कहते ताई आपको मेरे पास एक ताबीज लेने के लिए आए। मेरे पास अजीब अजीब कार्टून आते, एक ताबीज लेने के लिए मेरे पास। मेरे को क्या बोलते मालूम? मौलाना और लड़की से मोहब्बत हो गई, मैंने कहा शादी कर ले। मेरे को क्या बोलते भाई मोहब्बत हो गई तो शादी कर। लेकिन वो तो तैयार है, मैं भी तैयार हूँ। तो मैंने कहा फिर अरे भाई मियाँ बीवी तैयार तो फिर हम क्या? तो कहता नहीं मौलाना असल में प्रॉब्लम क्या है? वो मुझे कहता मौलाना प्रॉब्लम क्या है कि तैयार तो हम हैं लेकिन वो लड़की का बाप हाँ नहीं बोलता। लड़की का बाप? तो मैं बोला मैं क्या करूँ? कहते कोई ऐसी ताबीज दे उसके मुंह में ठोसू तो हाँ बोले। तो मेरे को भी मजा आया, भाई मेरे को भी ऐसा कोई मिलता ना तो मैंने भी जानबूझ कर कहा तू वो लड़की से मोहब्बत करता है? बोला हाँ। मेरे को कैसा मालूम तू मोहब्बत करता है? भाई मेरे को कैसा मालूम? तो कहते कारी साहब कैसी बात करते हो? मैं वो लड़की से इतनी मोहब्बत करता, उसका खाने का टाइम मेरे को मालूम, उसका पानी पीने का टाइम मालूम, उसको कौन से कपड़े पसंद मेरे को मालूम, उसको कौन सा कलर पसंद मेरे को मालूम, उसके उठने का टाइम मालूम, उसके बैठने का टाइम मालूम, उसके खिड़की पे आने का टाइम मालूम, मोबाइल नंबर मालूम, उसके बाप का नाम मालूम, उसकी माँ का नाम मालूम, उसके फैमिली का नाम मालूम। इतना बोला मैं बोला भाई जा बाद में ताबीज लेके जाना जा। और मैं दिल में सोचने लगा जब मोहब्बत उससे इतना बहुत मालूम होता तो हमको हजरत मौलाना इलियास से कितने जमाने से मोहब्बत है, दावत और तबलीग का काम कितने जमाने से चलता, उनके अब्बा का नाम नहीं मालूम। अरे बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? अरे बोलो ना आ रही है नहीं आ रही? आज से मोहब्बत करोगे। देखो मैं मौलाना इलियास का ऐसा वाकया सुनाऊंगा कि एक वाकये में सब पता चल जाएगा कि मुस्तफा का दामन, जोर से मुस्तफा का दामन। खड़े सुनो मेरे प्यारे सुनो। हजरत मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह, उनके अब्बा का नाम याद रखो, उनके अब्बा का नाम मौलाना इस्माइल। पूरा मजमा बोलो हजरत मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह के अब्बा का नाम मौलाना इस्माइल। बोलो मौलाना इस्माइल। उनके अब्बा का नाम गुलाम हुसैन, उनके अब्बा का नाम हकीम करीम बख्श, उनके अब्बा का नाम हकीम गुलाम मोहिउद्दीन, उनके अब्बा का नाम मौलाना साजिद, उनके अब्बा का नाम मौलाना फैज, उनके अब्बा का नाम मौलाना शरीफ, उनके अब्बा का नाम मौलाना अशरफ, उनके अब्बा का नाम मौलाना शेख मोहम्मद जमाल शाह, उनके अब्बा का नाम बाबन शाह, उनके अब्बा का नाम शेख बहाउद्दीन शाह, उनके अब्बा का नाम शेख मोहम्मद, उनके अब्बा का नाम शेख मोहम्मद फासिल और उनके अब्बा का नाम शेख कुतुब आलम रहमतुल्लाह अलैह। ये आपका शजरा है मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह का, जो किताबों में हमको मिलता है। अब मैं आपको एक बात बताऊं, देखो जो मुस्तफा का दामन किसको कहते हैं मौलाना इलियास से सीखो। जब आखिरी घड़ी आई ना, बोलो हमारी भी आने वाली है, अरे बोलो ना बेशक हमारी भी। जब हजरत मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह की आखिरी घड़ी आई ना, देखो यूं बिस्तर पे लेटे
हाँ? और ठंडी चिलचिलाती ठंडी, आखिरी घड़ी आई तो मौलाना इलियास का एक खादिम, बोलो एक मौलाना इलियास ने, देखो मैं इशारे में इसे मौलाना इलियास आखिरी घड़ी में बोल नहीं सकते थे, किससे बात करते थे? इशारे से। तो देखो खादिम को इशारा क्या कर रहे हैं, खादिम को इशारा कर रहे हैं, क्या मतलब इधर, और फिर यूं इशारा कर रहे यूं, यानी वो जो मोजे पहने ना मोजे, तो इशारा करते कि मेरा मोजा उतार, मोजा। अब वो खादिम तो कितने जमाने से खिदमत करता, फौरन समझ गया, हजरत कहते कि मोजा उतारो, वो खादिम आया और मोजा उतारने गया तो हजरत ने क्या क्या मतलब नहीं, तो खादिम रुक गया कि भाई चलो माइंड बदल गया, मोजा उतारने का। जैसा खादिम दूर गया तो फिर यानी आओ और मोजा, तो खादिम आया, जैसा मोजा उतारने गया हजरत ने क्या यानी मतलब नहीं, खादिम चला गया। फिर खादिम को कहा, तो खादिम सोचने लगा ये क्या मामला, कहते मोजा उतारो, और जब उतारने आता हो तो क्या कहते नहीं, ऐसा 1 मर्तबा 2 मर्तबा 3 मर्तबा 4 मर्तबा 5 मर्तबा 6 मर्तबा 7 मर्तबा ऐसा हुआ, कहे आओ मोजा उतारो, है ना, इशारा करे। और जैसा खादिम मोजा उतारने जाए तो खादिम ने सोचा अल्लाह अल्लाह अल्लाह, 7 मर्तबा हो गया, मोजा उतारो मोजा उतारो मोजा उतारो, और उतारने जाता हूं तो क्या बोलते नहीं, तो खादिम चले गए घर में। बोलो खादिम कहाँ गए? घर में। और हजरत मौलाना इलियास के बेटे को बुला कर, जिनको हम हजरत जी कहते थे, इनको बुला कर लाए मौलाना इलियास के। तो मौलाना इलियास के बेटे को कहा, अब्बा को देखो ना, अब्बा यानी कौन? मौलाना। कहा अब्बा को देखो ना, 7 मर्तबा मेरे को बोलते मोजा उतारो मोजा उतारो मोजा उतारो, और मैं मोजा उतारने जाता हूँ तो इशारा करते कि मत उतारो, तो करो उतारो या नहीं उतारो? तो हजरत जी आए, मौलाना इलियास के बेटे हजरत जी, हाँ हाँ अब्बा कहते मोजा उतारो। तो खादिम वापस आया और जैसे मोजा को पकड़ा ना तो मौलाना इलियास, तो खादिम ने कहा देखा आपके अब्बा को, देखा आपके अब्बा को देखा, जब भी मैं मोजा उतारने आता हूं तो मेरे को इशारे में क्या बोलते? तो हजरत जी रोने लगे, हजरत जी रोने लगे और कहने लगे असल में हमारे नबी जब मोजा उतारते थे तो पहले उल्टे पांव का उतारते थे, और तुम अब्बा जी के सीधे पांव का उतार रहे थे। तुम मोजा सीधे पांव का उतार रहे हो, हालांकि मेरे नबी ने कभी भी मोजा उतारा है तो पहले उल्टे पांव का उतारा है, फिर सीधे पांव का उतारा है, तो तुम उल्टे पांव का नहीं उतार रहे हो। तो खादिम ने कहा अच्छा ऐसा मामला है। अब खादिम उल्टे पांव की तरफ आए और जैसा मोजा उतारा, हजरत मौलाना इलियास के आंखों में आंसू थे और चेहरे पर मुस्कुराहट थी, और थोड़ी देर के बाद अल्लाह को प्यारे हो गए, मगर पूरी उम्मत को कहते चले गए इलियास दुनिया से चला गया, इलियास दुनिया से चला गया, मगर आखिरी काम भी मुस्तफा के दामन को थाम के चला गया। ये है मुस्तफा का दामन कि कपड़ा मोजा उतारना पहनना, उसमें इतना ख्याल होता था। तो थोड़ी देर के लिए सोचो हम लोगों ने क्या किया है मुस्तफा का दामन। इसलिए मैं आखिरी बात पे आ जाऊं, बोलो आ जाओ आखिरी बात पे आ जाओ, आ जाओ। कितने काम हमने वो करने के थे? मैंने जोर से बोले कितने काम करने के थे? वो 3 काम, 2 काम हो गए, ला इलाहा। और नंबर 2 कौन कौन तैयार है? मुस्तफा का दामन, बिल्कुल पक्की बात है, मुस्तफा का दामन। तो चलो आखिरी बात, आखिरी बात लेकिन करने वाले हो तो मैं बोलूं, बोलो खरोड़ वाले हो, करने वाले हो? नहीं आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं आ रही, इधर मेरी तरफ देखो, बोलो करने वाले हो? आखिरी काम करना, बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। चले पूरा मजमा साथ में बोले भाई करेंगे इंशाअल्लाह। क्या काम करना मालूम? क्या काम करना? पूरा मजमा आज एक बात का यकीन कर ले कि जान दे सकता। पूरा मजमा बोलो जान, नहीं आवाज नहीं आ रही आपकी, साथ में बोलो जान दे सकता, लेकिन मेरी नमाज कज़ा नहीं होगी। पूरा मजमा बोलो मेरी नमाज कज़ा। कौन कौन तैयार है? हाथ ऊपर करे भाई, बोलो मेरी नमाज कज़ा। तो मैं एक बात बता दूंगा, एक बात, बस एक बात बता दूंगा, बात खत्म कर दूंगा, लेकिन पूरा मजमा बोलेगा भाई हमारी नमाज कज़ा। आवाज अभी भी नहीं आ रही, पूरा मजमा बोले हमारी नमाज कज़ा। मैं एक बात आपको बता रहा हूँ, सुनना, हमारी माँ बहनें भी सुन रही होगी, आप भी सुनो, और अल्लाह का वास्ता देता हूँ, वास्ता दे रहा हूँ अल्लाह का, किसी और का वास्ता नहीं देता, और मैं कुछ लेने नहीं आया, बस सिर्फ एक काम के वास्ते आया। भाई बोलो करोगे नहीं इंशाअल्लाह? आपको एक वाक्य सुना तो सुना होगा आपने, आज ताज़ा कर लो मेरे प्यारो। आपको मालूम है ना मदीने पाक में एक औरत, बोलो मदीने पाक में, जोर से मदीने पाक में, और हजरत अबू हुरैरा का दरवाजा खिटखिटा रही है, ठक 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 ठक। हजरत अबू हुरैरा का दरवाजा, हजरत अबू हुरैरा घबरा के, कौन मेरा दरवाजा खिटखिटाता? यूं दरवाजा खोला तो देखा पर्दे में औरत है। हजरत अबू हुरैरा घबरा गए, क्या हुआ? हजरत अबू हुरैरा पूछ रहे बहन क्या हुआ?
तो इतना रो रही। हज़रत अबू हुरैरा ने कहा बहन रोना तो बंद कर, तो पता चले कि क्या हुआ। तो रोते रोते क्या बोल रही मानो, रोते रोते कह रहे मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया, अल्लाह मेरे को माफ करेगा कि नहीं कर। अबू हुरैरा ने कहा बता तो सही कौन सा गुनाह हो गया। वो जो बाहर बहन थी ना पर्दे में, कहती मुझसे जीना हो गया। बोलो मुझसे। और फिर क्या कहती मालूम, अबू हुरैरा जीना तो हो गया, लेकिन मैं प्रेग्नेंट हो गई तो बच्चा पैदा हुआ। अब लड़का पैदा हुआ, मैं कैसे किसी को बताऊं कि लड़का हुआ, मेरा शोहर तो है नहीं। तो मैंने छुरी लेके बच्चे के 2 टुकड़े कर दिए और जाके मदीने के जंगल में जाके डाल दिया। तो मैंने जीना भी किया, मेरे बच्चे को कत्ल भी कर डाला। अब बताओ ना मेरी तौबा कबूल होगी कि नहीं होगी। हजरत अबू हुरैरा हो चेहरे का रंग बदल गया। औरत को क्या कहा, निकल यहाँ से, निकल जा, इतना बड़ा गुनाह, जीना कराए, हराम का बच्चा, और कैसी माँ है जो बच्चे के 2 टुकड़े कर दे, ऐसी माँ। निकल तेरे लिए कोई तौबा का रास्ता नहीं। चलो वो औरत, बोलो वो औरत। एक साहबी आए और अबू हुरैरा को क्या कहा, अल्लाह के रसूल अब भी अर्जेंट बुला ले, चलो अब भी बुला ले। अबू हुरैरा तो काफी रहे थे भाई, इतना बड़ा गुनाह सुना था, कहाँ पर। हज़रत अबू हुरैरा दौड़ते दौड़ते अल्लाह के रसूल के पास गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह के रसूल ने कहा वो मेरी उम्मत की औरत आई थी, क्या जवाब दिया। तो अबू हुरैरा ने सर पे हाथ रखा, अल्लाह के रसूल वो जीना करवाए, जीना, और उसके बाद बच्चा पैदा हुआ और बच्चे के उसने 2 टुकड़े कर दिए, 2 टुकड़े, अरे छुरी से तलवार से 2 टुकड़े कर दिए और बच्चे को जंगल में फेंक कर आ गई। मैंने कह दिया तेरी तौबा कबूल नहीं होगी। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अबू हुरैरा क्या इससे बड़ा गुनहगार न बताऊं, इससे बड़ा गुनहगार न। तो अबू हुरैरा ने कहा इससे बड़ा कौन गुनहगार होगा, जो औरत जीना करावे, बच्चे को 2 टुकड़े करे, इससे बड़ा कौन गुनहगार होगा। हमारे नबी ने फरमाया उस जात की कसम जिसके कब्जे में मोहम्मद की जान, इससे बड़ा भी मेरा एक उम्मती गुनहगार है, ये औरत से बड़ा गुनहगार है। अबू हुरैरा ने कहा वो कौन सा गुनहगार है। हमारे नबी ने फरमाया अल्लाह की कसम मेरा वो उम्मती जिसे नमाज का वक्त मिले और जानबूझकर नमाज को छोड़ दे, नमाज का वक्त मिले और जानबूझकर नमाज को। देखो बुरा नहीं मानना, अगर हमारे खरों में अगर ऐसी औरत अल्लाह न करे होवे ना, ओटे पे बैठ के हम उसका चर्चा करेंगे कि नहीं करेंगे, पेपरों में आएगा, अखबार में आएगा, मीडिया चिल्लाएगा, अरे एक औरत जीना करे और अपने बच्चे के 2 टुकड़े करे, पूरी दुनिया का मीडिया चिल्लाएगा। ओ मेरे खरोड़ के जवानों, जब हम नमाज छोड़ते हैं तो आसमान का मीडिया चिल्लाता है, आसमान का मीडिया चिल्लाता है, इसलिए कि हम उस औरत से भी बड़े गुनहगार हैं। इसलिए मेरे दोस्तों किसी के ऊपर इल्जाम और तोहमत लगाने से पहले अपना सोचो, इतने दिन से मैं नमाज नहीं पढ़ा, मैं कितना बड़ा गुनहगार हूँ। इसीलिए एक बात बताता हूँ, मैं किसी और मुफ्ती का फतवा देता ना तो शायद आपको समझ में नहीं आता। शेख अब्दुल कादिर जिलानी, नाम सुना ना, शेख अब्दुल कादिर जिलानी, उन्होंने बहुत सारे फतवे दिए। उनको जब ये पूछा कि कोई जानबूझ के नमाज छोड़े तो क्या, कोई जानबूझ के नमाज छोड़े, आपका फतवा क्या है। पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने फरमाया मन तरक सलात मुतअम्मिदन लैसा लहू फिल इस्लामी नसीब। पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा सुनो, जो जानबूझकर नमाज छोड़े, कहते मुझे डर लगता है अब मौत के वक्त उसको कलमा नसीब नहीं होगा। खत्म हो जाती है बात मेरे दोस्तों, कुछ बोलने जैसा रहा ही नहीं। अरे बोलो कुछ रहा बोलने जैसा, अरे बोलो ना अब कुछ रहा। अब भी अगर हमारा खरोड़ का जवान नमाज छोड़े तो इससे बढ़कर बेशरम कौन होगा। ये हज़रत मौलाना जुल्फ़िकार नक्शबंदी है ना, दामद बरकातुहू अल्लाह उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। उन्होंने क्या कहा मालूम, ऐसी बात सुनने के बाद भी अगर कोई नमाज में नहीं आता तो कहते 2 तरह का मुसलमान है, एक वो है जिसका ईमान सोया है और एक वो है जिसका ईमान मोया है। मोया है यानी मर गया है, एक का ईमान सोया है और एक का ईमान मर गया। हज़रत मौलाना जुल्फ़िकार नक्शबंदी दामद बरकातुहू क्या फरमाते, अरे ऐसी बात सुने, अगर ईमान सोया होगा तो जाग जाएगा, लेकिन ये बात सुनने के बाद भी फजर नहीं पड़ता तो इसका मतलब है कि ईमान सोया नहीं है, ईमान मर गया है मेरे दोस्त, ईमान मर गया है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। मत मारो अपने ईमान को, मत मारो मेरे प्यारो। बात खत्म कर रहा हूँ, 3 काम करोगे, अल्लाह ने यहाँ जमा किया, अल्लाह हमको जन्नत में भी जमा करेगा, बोलो इंशाअल्लाह। पहला काम क्या होगा, बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह। दूसरा काम क्या होगा, मुस्तफ़ा का दामन नहीं। और तीसरा काम पूरा मजमा, माँ बहने बेटियाँ सब हम लोग सब पक्का इरादा, हाथ ऊपर करो, चलो हाथ ऊपर करो और बोलो मेरे साथ में, बोलो इंशाअल्लाह। यानी पूरा मजमा इंशाअल्लाह। बोलो कल की फजर, बोलो इंशाअल्लाह। अरे मौत की शाम, बोलो इंशाअल्लाह। हमारी नमाज
नमाज कज़ा नहीं होगी, वो हमारी नमाज कज़ा। यही रबीउल अव्वल का महीना हमारे नबी का विसाल मुबारक हुआ। हजरत अली फरमाते, मेरे नबी ने आखिर में कहा अस्सला 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 व मा मलकत ऐमानुकुम, नमाज नमाज नमाज। मेरे दोस्तों, नबी की नसीहत नमाज नहीं है, नबी की वसीयत नमाज है, और वसीयत को तोड़ना इससे बड़ा मुजरिम कोई नहीं हो सकता। इसे सब पढ़ेंगे, नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सबके बैठने सुनने को कबूल फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। देखो, मैं अब खरोड़ में बहुत ज़माने के बाद आया, हमारे सुलेमान भाई की दावत पर मैं पहुंचा। मैं बहुत बहुत इनका शुक्रिया अदा करता, बल्कि पूरे खरोड़ वालों का शुक्रिया अदा करता। हमारे बहुत सारे उलमा यहाँ बैठे, मौलाना अब्दुल हक साहब, अल्लाह के वलियों का वली यहाँ पर मौजूद है, और ये भी सुलेमान भाई की बरकत से यहाँ पर आ गए। अल्लाह इनकी भी उम्र में बरकत अता फरमाए। और भी हमारे भाई याकूब साहब यूके से आए हुए। अच्छा, एक बच्चा हमारे साथ में आया, ये मौलाना मोहम्मद अब्दुल्ला साहब, ये मौलाना मोहम्मद एक साल जमात में चल रहा है माशाअल्लाह, यूके का आया हुआ, एक साल जमात में चल रहा है, वो भी हमारे साथ में। मौलाना उस्मान साहब है, मौलाना आरिफ साहब है, मौलाना आसिफ साहब है, और भी बहुत सारे यहाँ के इमाम साहब, मौलाना अब्दुल्ला साहब है, बड़े बड़े उलमाए किराम यहाँ पे बैठे हुए। ये हमारे जितानी से दो हमारे प्यारे प्यारे मांगरोल से, मालूम नहीं कहा। मैं तमाम का शुक्रिया अदा करता और एक दुआ करता हूँ, आप सबके लिए एक दुआ करता हूँ। हमारे हजरत मौलाना अब्दुल्ला झांझी साहब ये भी तशरीफ लाए, मैं सबके लिए दुआ करता हूँ, अल्लाह सबके जान में, माल में, उम्र में बरकत अता फरमाए, और पूरा मजमा एक साथ में आमीन कह दे। हम नमाज पढ़ेंगे, बोलो इंशाअल्लाह, उसके बदले अल्लाह हमको जन्नतुल फिरदौस नसीब फरमाए। मैं पढ़ेंगे नहीं, सब नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। नहीं, पूरा मजमा बोले नमाज पढ़ेंगे नहीं इंशाअल्लाह। अल्लाह हमको जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह ताला मकाम अता फरमाए। तो मैं आप तमाम का शुक्रिया। और एक बात बताऊं, ये मैं अकेला बयान करने वाला नहीं, ये मौलाना आरिफ साहब बैठे, आपने शायद सुना होगा, बल्कि सुना ही होगा, ये भादी के हैं। ये जब बयान करते तो जबरदस्त बयान होता है। फिर हमारे मौलाना आसिफ साहब बैठे, कि मौलाना ये भी जबर, यानी मैं तो ये चाहता था, आज मैं ये चाहता था कि मैं सुलेमान भाई के घर में बैठूं और मौलाना आरिफ साहब को बोलूं कि तुम आधा घंटा बयान करो, आधा घंटा मौलाना आसिफ बयान करे और आधा घंटा मैं बयान करूं, इस तरह 1.5 घंटा मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन मामला ऐसा हुआ कि सुलेमान भाई ने मेरे को घर में बैठने, अब एक तरफ ये बैठने नहीं दे रहे, दूसरी तरफ दांतों में दर्द था, तो मैं खुद ही आके बैठ गया। लेकिन मेरे प्यारों, ये ऐसे जवान, अब मैं मौलाना अब्दुल्ला सबको कहता हूँ, मौलाना आरिफ को लाओ मैदान में, लाओ मौलाना आसिफ को मैदान में लाओ। अब ये इंजन बुढ़ा हो गया, अब एक्सप्रेस गाड़ियां आए तो लोकल को साइड में दुआ करें, अल्लाह ताला हम सबके बैठने। ये बड़े बड़े उलमा, ये बहुत, ये बुखारी शरीफ पढ़ाने वाले, ये मरकज़ इस्लामी में बड़ी बड़ी किताबें पढ़ाने वाले, और मैंने खुद सुना, इन दोनों हजरात का बयान सुना, क्या प्यारा अंदाज और क्या उर्दू में फलासत तलाकत, अल्लाह दोनों प्यारे मेरे तो बच्चों की तरह, अल्लाह इन दोनों की उम्र में खूब बरकत अता फरमाए, अल्लाह इन दोनों से खूब दीन का काम ले, अल्लाह इनको बेहतरीन मुकर्रिर और ऊंचा खतीब उम्मत बनाए, और अल्लाह इनसे बहुत दीन का काम ले। और मौलाना अब्दुल्ला साहब, मेरा इधर आ रहा, आओ कब पूछो पूछो कब पूछो, ऐलान कर दो तारीख का? जी कर दिए। खाने में क्या दूं? मौलवी ये खाना का पूछे, सुने मैं पूछे इंशाअल्लाह ये महीने की 13 तारीख। कौन सी तारीख? 13 तारीख हम रविद्रा पहुंचे इंशाअल्लाह। कितना दूर यहाँ से रविद्रा? बस तो पूरा मेरे ख्याल में सब आएंगे इंशाअल्लाह। अरे बोले कौन कौन आएगा इंशाअल्लाह? नहीं आने वाले हो तो बोले अब्दुल्ला तो बहुत सखी दिल दरिया है, वो इंतजाम करेगा गाड़ियों का, हाँ सब पहुंचेंगे इंशाअल्लाह। ठंडी तो नहीं लगेगी ना ज्यादा आप लोगों को? तो 13 तारीख मंजूर है आपको? जी बिल्कुल। खाना बना मेरा तो दोस्त, वो अलग बात है भाई। अभी वो आप लोग कहते मौलाना अब्दुल्ला झांझी मरकज पे रहने वाला, हम लोग इतना चर्चा इनका सुनते भाई, हम तो साथ में खेले हुए भाई। खाना यहाँ खाकर देखा तभी कुछ कम बयान किया मैंने। अरे इनका खाना भी तो खाने तो बस, मौलवी का खाना बहुत कम नसीब होता है किसी को। आप भी जरूर आएंगे ना इंशाअल्लाह। आप वैसे भी 15 तारीख को जाने वाले, 13 तारीख को रविंद्र आएंगे आप इंशाअल्लाह। और मौलाना अब्दुल हक साहब आ जाए तब तो सोने पे सुहागा इंशाअल्लाह। 13 तारीख को भाई याद रखेंगे ना, ये महीने की 13 तारीख इंशाअल्लाह हम कहाँ जमा होंगे, और यही बात को हम आगे लेकर बढ़ेंगे इंशाअल्लाह। ये 3 काम कर लो, अल्लाह हम सबको जन्नत में आला से आला मकाम अता करेगा। चलो मेरे दोस्तों, मैं दरूद शरीफ लेकर आया हूँ। कल भी मैंने नानी नरोली में भी वो दरूद बांटा, आज भी वो दरूद बटेगा। किसको दिया?
किनको दिया आपने? कोई एक आदमी ले ले जिम्मेदारी, नाम ले ले, आपका नाम बोलो बेटा। नहीं भाई, नईम भाई से दरूद जरूर लेके जाना। सुनो इधर सुनो, मैं पहले आपको बता दूं, दरूद एक लाइन का है। कितनी लाइन का दरूद है? अभी मत बांटो सुलेमान भाई, अभी नहीं, बाद में दुआ हो जाए ना, उसके बाद आराम से बांटो। एक लाइन का दरूद है और उसका फायदा क्या है मालूम है? एक मर्तबा दरूद पढ़ ले, अल्लाह 70 फरिश्तों को, कितने फरिश्तों को? 70 फरिश्तों को अल्लाह कहता, ये मेरे बंदे ने दरूद पढ़ा है, 1000 दिन तक इसका सवाब लिखना, 1000 दिन तक इसका सवाब लिखना। तो मेरे दोस्तों, एक बार पढ़ो तो 1000 दिन तक सवाब, 2 बार पढ़ो तो 2000 दिन तक सवाब। तो अपने ऊपर अब कितनी मर्तबा भी पढ़ो। और दरूद बहुत छोटा है, जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदा, बोलो जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हुवा अहलु, जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हुवा अहलु। एक मर्तबा कोई दरूद शरीफ पढ़ ले, हमारे नबी ने फरमाया 70 फरिश्ते 1000 दिन तक तेरे नाम है आमाल में सवाब ही सवाब लिखते जाएंगे। तो इंशाअल्लाह हमारे नईम भाई तकसीम करेंगे, आप सब लोग लेके जाना। अल्लाह ताला हम सबके बैठे और जितने उलमा के नाम बैठे खुसूसी तौर पर उनका शुक्रिया अदा करता। अल्लाह ताला तमाम उलमा के इल्म में बरकत नसीब फरमाए। अभी 2 काम करना है, दरूद पढ़ना है, रबीउल अव्वल महीना है, और उसके बाद दुआ करना है। ठीक है ना भाई, सब लोग तैयार हैं इंशाअल्लाह? अरे बोलो तैयार हैं इंशाअल्लाह? क्या करेंगे? आपकी मुलाकात करूं या चले जाऊं? सलाम करूं जी? बहुत टाइम हो गया, बात तेरी आरिफ बराबर है, बहुत जमाने के बाद पते की बात बोला, मिला इतना जमाने के बाद। तो ठीक है भाई, देखो बात बराबर है, मेरे को तकलीफ भी बहुत है दाढ़ में, तो मैं आपसे माफी चाहते हुए, या चलो एक काम करता हूं, मुलाकात कर लो। ठीक है ना, मुलाकात करो ना, मैं यहाँ बैठ जाऊंगा, नीचे बैठ जाऊंगा तो सहूलत रहेगी। एक तरफ से आवे और एक तरफ से चले जावे, एक तरफ से आवे एक तरफ से चले, भाई करेंगे ना, मुलाकात करेंगे ना इंशाअल्लाह। मैं क्यों मुलाकात कर रहा हूँ? हालांकि मेरे को बहुत तकलीफ है, क्यों मुलाकात कर रहा मालूम नहीं। मौलाना अब्दुल्ला साहब, कोई अल्लाह का वली बैठा होगा, उसका हाथ मेरे हाथ पे लगेगा, अल्लाह मेरे को भी वली बना देगा। तो मैं माशाअल्लाह भाई सब करेंगे ना मुलाकात इंशाअल्लाह। चलो आप दरूद पढ़ो, गर्दन झुका दो, हम सब दरूद पाक पढ़े। मेरी जुबान पर मोहम्मद, आपकी जुबान पर सल्लल्लाहु। शुरू करें, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मद व शफीइना मुहम्मद व सनदिना मुहम्मद व मौलाना मुहम्मद। आमीन। محمد الأول محمد الآخر محمد المرتضى محمد المجتبى محمد المصطفى محمد أفضل الرسل محمد أشرف الرسل محمد أكرم الرسل محمد أطيب الرسل محمد أجمل الرسل محمد أحسن الرسل محمد بدر الدجى محمد شمس الضحى محمد خير الورى محمد نور الهدى محمد البشير محمد النذير محمد السراج محمد المنير محمد المزمل محمد المدثر محمد طه محمد ياسين محمد صلى الله عليه وسلم. سب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم صل على محمد حتى لا يبقى من صلاتك شيء. اللهم سلم على محمد حتى لا يبقى من سلامك شيء. اللهم ارحم على محمد حتى لا يبقى من رحمتك شيء. اللهم صل على روح محمد في الأرواح. اللهم صل على جسد محمد في الأجساد. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إنا ندعوك الله وندعوك الرحمن وندعوك البر الرحيم وندعوك بأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم أن تغفر لنا وترحمنا. يا الله ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اللہ ہمارے خطاؤں سے اللہ ہم بہت بڑے گنہگار، اللہ ہم بہت بڑے گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، مجرم ہیں، پاپی ہیں. اللہ ہمیں معلوم ہے اللہ
ہم بہت بڑے گنہگار ہیں اللہ. اللہ تیرا احسان ہے, اللہ تیرا احسان ہے. تو نے کبھی بھوکا نہیں سنایا, کبھی پیاسا نہیں تڑپایا, کبھی بدن سے کپڑے نہیں چھینے. اللہ اللہ ہم گنہگاروں کے گنہگار, ناپاکوں کے ناپاک, اور تو پاکوں کا پاک. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہمیں کلمہ طیبہ کا یقین عطا فرما دے. اے اللہ پیارے نبی کا دامن ہمیں وابستہ فرما دے. اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ ہمارے ماں باپ کی عمر میں برکت عطا فرما دے. اللہ ہماری ماں بہت اچھی, ابا بہت اچھے, ان کی عمروں میں برکت عطا فرما, تندرستی عطا فرما, صحت عطا فرما. اللہ جن کے اماں ابا دنیا چھوڑ کے چلے گئے نا, اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر. اللہ بہت سے لوگ بیٹھے ہیں جن کے رشتے دار انہیں چھوڑ کے چلے گئے. کسی کا بیٹا چھوڑ کے چلا گیا, کسی کی ماں چھوڑ کے چلی گئی, کسی کی بیوی چھوڑ کے چلی گئی, کسی کا ابا چھوڑ کے چلا گیا. اللہ کون ہوگا جو اپنے مرحومین کو یاد نہیں کرتا ہوگا. اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے, اللہ ان کی قبر کو رحمتوں سے بھر دے, اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے, اللہ ان کی قبر میں جنت کی نعمتیں لٹا دے. اے اللہ ہمیں صراط مستقیم عطا فرما دے. اے اللہ ہمیں معلوم ہے اللہ بولنے میں غلطیاں ہو جاتی ہے, خطائیں ہو جاتی ہے. اے اللہ جو بھی غلطی ہوئی ہو اے اللہ ہمیں معاف کر دے. اللہ سننے میں جو غفلت ہوئی ہو اللہ اسے بھی معاف فرما دے. اللہ کہ پورے مجمع کو نمازی بنا دے نا اللہ, اللہ پورے مجمع کو نمازی بنا دے. اے اللہ اے اللہ اے اللہ میں ہمت ہارا اللہ, اے اللہ میرا آخری کام تھا, میں نے ہاتھ اٹھوا دیا اللہ. جہاں بندے کی طاقت ختم ہوتی ہے اللہ تیری قدرت شروع ہو جاتی ہے. کہ اللہ سب کو نمازی بنا دے اللہ, چن چن کے نمازی بنا دے اللہ, یہ پوری بستی کو نمازی بنا دے اللہ, پورے مجمع کو نمازی بنا دے اللہ, اللہ پورے عالم کو نمازی بنا دے اللہ. پورے عالم میں خصوصاً ہمارے ہندوستان میں اللہ چین سکون امن عطا فرما دے. اللہ ظالموں کے ظلم سے بچا لے. کہ اللہ ہم سب کے گھروں میں عزتوں کے فیصلے فرما دے. ہمارے بچوں کو حافظ کامل بنا دے, عالم بعمل بنا دے, دین کا داعی بنا دے, چپے چپے میں تیرے کلمے کو زندہ کرنے والا بنا دے. اللہ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائیاں مانگی عطا فرما دے, جتنے شرور سے پناہ مانگی حفاظت فرما دے. اللہ ہم بیمار ہیں اللہ, تمام بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ دائمہ عطا فرما دے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.